have, how long have you been on Quora? I started in 2018 and now it's 2021. Currently, I'm not much active on Quora because of studies and all. But there was a time when I used to spend hours on Quora in 2018. Like there was a time I was into too much of depression because of the dropping years for NEET preparation. So Quora used to be an escape. I never came to Quora for some goal or I need to have this much followers and this much views. I just kept writing, kept writing my heart, and today is the day. Quora is amazing, have been amazing part of my life. It is, and it's been years now, but I like reading now. I read much. You're into back old same patterns again. Um, Sorry, can Yeah, you? you're into back same old patterns again. जब starting में वो reading वाला phase रहता है and then you just can't get Yeah, over yeah, it. yeah, yeah. I read a lot. There's not much to write, right? Because I struggle in my life currently have completely vanished. And when you're in struggle, when you're depressed, when you're just fucked up life, you're having that kind of life. Then Quora comes at your doorstep like an escape, and you just completely engross yourself with people. You interact with them, and currently I'm having a very smooth phase of life. Like everything is on track and I'm just loving. So I just read. When I'm down, when I want to cry, I am in a very down phase, I write on Gora. I just spill out my emotions on that keyboard. वैसे Quora is a really good option for you when you want to vent things out of your head because आप ये सब Instagram पे और YouTube पे नहीं कर सकते. Did not really like you have to put turn on the camera. You have to look presentable. You have to like be on point so that and you also have to write things so that other people are also not offended. Like you need to consider a lot of things before posting a video of yours on the internet. But in Quora it is very much like it is so much part of it has been reduced. और आप बस कभी भी फोन उठाकर लिख सकते हो चाहे रात के 2 बज रहे हो चाहे सुबह के 5. You just need to write everything down and so many people will be there so that they will relate to you. और ये काफी ज्यादा अच्छी बात है. Yes, I get a lot of messages from people that I am currently in the same situation. This particular line, I keep reading it again and again. I am currently in the same situation which once you have been. I am currently wearing your shoes. So I think I can guide them that I know it's a hard phase. Today only I got a message from a girl. She's really stressed out because the NEET results came out and her rank was somewhere in 2 lakhs and she was completely blank. She's so stressed out and I was like, come on, babe, relax. Some months have come and you just need to relax before you get admission. That's it. नीट पे तो उतना ज़्यादा लाइक वो कोरप अच्छा नीट और जे इज समथिंग दैट हैपेंस अ लॉट इन कोर लाइक इट मैटर्स अ लॉट अगर बाकी ज़्यादा वेबसाइट पे देखो आप तो वहाँ पे इतना पता नहीं चलता बट मैंने कभी ऐसे आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड तो मैंने तो कभी नीट के बारे में कुछ पढ़ा नहीं बट स्टिल टुडे एज आई ओपन कोरा माई फीड वाज फ्लडेड विद दिस लाइक नीट का रिजल्ट कितने रैंक वगैरह ये सब जो भी होता है तो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है लोगों की लाइफ में. See, JEE and NEET both are a pretty big deal for most people. मतलब बहुत सारे aspirants है ना वही मतलब compare करो बाकी एग्जाम से so those exams are not really hyped up this much. उसने लोग ही नहीं है बाकी में. Yeah, she's right. Nearly 16 lakh aspirants for NEET and 11 to 12 lakhs for JEE. So you can see almost like 40 lakhs almost. जो 2020 का भी गैप लगा चलो तो 40 के आसपास 35-40 lakhs मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है लाइक ऑडियंस इतनी बड़ी हो जाती है आपकी इफ यू राइट अबाउट ओनली दीज टू एग्जाम्स. और उसके बाद फिर क्या कहते हैं सिलेक्शन वगैरह देन यू आल्सो नीड टू गेट इनटू टॉप कॉलेजेस अदरवाइज इट विल ऑल जस्ट बी वेस्ट ऑफ टाइम. अच्छा दीक्षा दी आई हैव टू आस्क दिस वन थिंग टू यू कि if you are let's just say you studied hard you studied so hard in your 20 you were 19 or 20 something when you wrote that answer जिसमें आपको आपने लिखा था कि आपकी लाइफ कैसे जब आपने ड्रॉप ही लेते तो हाउ द सोसाइटी ट्रीटेड यू. It still treats me very badly. Like yesterday only my mom called me and she said that
some aunt was saying that she really wasted her time dropping those 3 years. She should might be having a job right now. And I was like, oh my god, I am seriously living the best time of my life here in college right now, and they're concerned about my age now. Society thinks you need to be perfect in every sort of way, otherwise you are not like suitable for us to live among us. We all are broken somewhere, like even those people, like there are people on Quora who are really better than me, and they got their ranks, and like they got really good ranks and also got a seat, but after a few years you'll see them committing suicide. Like um it happens. Somewhere we all are broken, somewhere Are we. that writer who has done PG and had committed suicide a year ago? Yeah, Was yeah, very famous. yeah, Ames, yeah. I think. And yeah, he was from like his name was Dr. Anurag, and he was so perfect. He was in Ames, Delhi, and I don't know how depression comes up, and how, and currently depression is actually affecting most of the teenage people because of, like, once I was traveling in train and there was lots of people around me, and all of them, like, there were two aunties and two uncles, and they were comparing kids of some relatives, and I was like, oh my god, we all teenage, all these teenage population is literally stressed because of such conversations which happen somewhere in a cafe, somewhere in trains, somewhere, and we don't even know about it. But because of there is such a cutthroat competition, depression is a byproduct. Of course, like the way all everything has been hyped up so much by parents in the society that people automatically put so much pressure into themselves and that they need to clear these ranks, otherwise they will not be good for life. The way you have seen in Yeah, Chichore movie, the way it happens with Jay and stuff. yeah. I think there should be only three things in life: that you have good food, eat good food, and please clean yourself, maintain good hygiene, and just be yourself. That's it. Studies are not at all important the way they are hyped up. No, your academics don't matter. It comes on your own when you become like जब आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हो, तो आपको पता चलता है कि हाँ, मुझे कुछ करना है आगे बढ़ के, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली आता है। किसी को प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को जल्दी आ जाता है, किसी को लेट आता है, किसी को 18 में आ जाता है कि हाँ, मेरे को नीट क्रैक करना है। मेरे जैसे बच्चों को 20 साल की उम्र में आता है कि अच्छा, अब सिलेक्शन हो गया, चलो 25 की उम्र में जॉब करनी है, तो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो बट 3 थिंग्स मैटर्स द मोस्ट: हैव गुड फूड, मेंटेन क्लीन हाइजीन, एंड बी योरसेल्फ, दैट्स इट। हाँ, यही चीजें काफी is my voice echoing? Hmm. Is it better now? Yes. Is it? हाँ हाँ, यस। Okay. सो हाँ, अच्छा दीक्षा दी, जैसे आपने वो क्या कहते हैं ड्रॉप ईयर वगैरह लिए, तो उसके बाद आपको नाउ दैट यू लुक बैक टू इट, डू यू थिंक इट वाज रेडी राइट फॉर यू टू डू सो, और लाइक यू कुड हैव डन सम बेटर थिंग्स इन दैट टाइम? हाउ डू यू फील अबाउट इट व्हेन यू लुक बैक एट इट नाउ, like from this point of view, the way you are at Currently, life now? I'd say that currently I'm very happy. My life is very smooth right now. But at that point of time, it was a arena of complete hopelessness, darkness, and dropping back to back. And whenever I now look at that phase, I think it was important for me because maturity came inside me much earlier than my peers, and I think it's worth it, worth to face failure sometimes. And I think that failure was important for me because I saw who's good, who's bad in my life, who matters not. And currently I'm not the only one. There are lakhs of students who are in my shoes right now. Today only I got a lot of messages because the NEET results came out, and there are, I think I once talked to a guy. Their family was so much stressed, and they were like, "Please pay us back all of we spent on your coaching." And he was like, he's not getting support even from his parents. What can we expect? He'll definitely commit suicide because of such thoughts in which there is no support. The currently whenever I look back there, I see and I today only I saw so many students in those shoes again. I just wanna मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं एक अपना शोल्डर दे सकूँ, that they can cry on it because I can really feel their pain. Because I know, अब तुम ही देखो,
16 लाख स्टूडेंट्स हैं और हार्डली 20,000 सीट्स हैं। 0.01% है आपके सिलेक्शन का। कितने सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। वो इवन दो उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की होगी, उन्होंने अपना जी जान लगा दी होगी, लेकिन फिर भी एक ऊपर की क्रीम लेयर को ही लेगा गवर्नमेंट, एंड बाकी जितने भी बच्चे थे उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। इवन दो दे ट्राइड देयर बेस्ट, वो पूरा पोटेंशियल तक लेके गए, एंड उस टाइम पे जब उनको अब सोसाइटी ट्रीट करेगी, आई थिंक दैट्स नॉट रियली वर्थ इट, बिकॉज उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की है। तो ऐसे बच्चों को आई रियली वांट टू लाइक गिव माय शोल्डर एंड प्लीज कम एंड क्राई, आई नो I can feel you. That's it. Yeah, you have been through all of that, so you obviously know what it feels like. See, I'm not the best. Like people treat me, I'm not the best. I just had like 458 marks in my NEET exam. There are many students who are much better than me. It's just that I got the seat at the time. I also got the BDS seat, not also MBBS seat. So um, there are much better people than me. I can really feel the way I feel. That sets me apart, and most of the students here do that. And I really have a soft corner for all those. They are not actually failures, they are just that they didn't survive the cutthroat competition which is currently set up, and there are lots of factors because of this. uh, there is a like बहुत corrupted government है currently, population बहुत है इंडिया का, और ऊपर से ये दो फैक्टर्स ही इतने ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा कंसर्न वाली चीज़ हो जाती है इसमें। और फिर बहुत अच्छा मतलब आई नो अ गाय जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे क्लास में, एंड ही वाज मच बेटर देन मी, बट नाउ ही इज़ लाइक उसका हो जाता सिलेक्शन, लेकिन वही है, वो जनरल कैटेगरी से था, नहीं हो पाया। वो बहुत सारी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे। ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और इट विल कीप गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, इट विल कीप गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड unless someone comes up and tries to change it in like सेंटर में जो गवर्नमेंट पावर में है वो आए तब। Yeah, totally. I hope that changes someday so that people are able to get what they deserve truly. Yeah, what the problem of Indian education system is only that education system of our country is merged with politics. I think that's the biggest problem right now. Education politics should be different. They should be treated separately, not merged as a complete. That's what I think. One should not involve education in politics. Like जैसे इन लोगों ने स्टार्टिंग में ही किया कि 12% का रिजर्वेशन रख के फिर उसको बढ़ाते चले गए, फिर सारी चीज़ों में एजुकेशन निकाल में घुसा दिया रिजर्वेशन को, वहीं से हम लोगों की स्टार्टिंग गलत थी। And the problem is it is caste based, like caste एक बहुत ही violating factor है। मतलब रिजर्वेशन होना चाहिए, लाइक फिजिकली हैंडीकैप्ड इज गुड, ट्रांसजेंडर्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू इकोनॉमिकली वीकर, वो तो है अभी, बट फिर भी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इज सीरियसली आई थिंक नॉट वर्थ इट। मैं जानती हूँ कुछ एरियाज़ हैं इंडिया में जहाँ पे सच में आज भी कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन एजुकेशन में एक कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का होना आई डोंट थिंक सो। जॉब्स में रखो आप, यस, कीप इट विद द जॉब्स। वैसे भी जो ये जेई और नीट में है जॉब्स खाली ही पड़े रहते हैं, तभी तो सब लोग इस पे लाइक इतना कंपटीशन है। पर एजुकेशन में जहाँ पे आपको एक कोर्स करना है वहाँ पे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का होना, इट्स रियली नॉट वर्थ इट। थैंक यू। अच्छा, what I feel कि like if someone has like if I was from a background मतलब backward caste and my father used the reservation quota, so I think कि मुझे eligible नहीं करना चाहिए कि हम आगे जाके कहीं पे भी like education अगर ये नहीं करना चाहते, like there are many people who will say कि नहीं अभी discriminate करते हैं इस basis पे, तो आप कैसे कह सकते हो, आप नहीं हटा सकते। तो what I think कि जैसे क्या कहते हैं this यस ये एब्सोल्युटली आई एग्री कि विद यू आदित्य।
टीना ढाबी के पापा मम्मी दोनों ने रिजर्वेशन यूज़ करके आईएएस के एग्जाम्स क्वालिफाई किए, और वो दोनों बहुत ही अच्छे। एंड आई टू लाइक आईएएस इज़ वेरी गुड पोस्ट, लाइक इंडियन एजेंडिंग सर्विस, वहाँ पे उनको अच्छी पोस्ट मिली, अच्छी पे थी, और उनको अच्छा कहा। पर फिर भी टीना ढाबी ने, आई एम नॉट लाइक आई एम नॉट जजिंग हर, क्या कहते हैं, स्ट्रगल एज वेल, शी जो भी उनको मिला, उनकी पोजीशन थी वो उनको मिला। बट फिर उन्होंने वो यूज़ करके शी बिकेम आईएएस ऑफिसर, फिर अभी उनकी बहन भी बनी है। तो ये गलत हो जाता है, लाइक अगर मेरे माँ बाप ने यूज़ किया तो आई शुडंट बी यूजिंग इट। ये एक पर्सनल चॉइस नहीं होना चाहिए, आई गेस इसको उसमें ला देना चाहिए लॉ में कि आप नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ से भी हम लोग अभी भी कर सकते हैं, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि जो पीछे कर दिया लोगों ने, अब वो तो हो चुका है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट व्हाट एवर हैज हैपेंड इन पास्ट। बट अभी हम लोग शुरू कर सकते हैं, द गवर्नमेंट शुड रियली लाइक अपना जो भी फोकस है उनका दूसरी चीज़ों में, अभी उनको यहाँ पे थोड़ा सा लाना चाहिए, एंड दे शुड डू समथिंग, ताकि जो आने वाली जनरेशन, लाइक अभी हम लोग भी हैं उस चीज़ में पिस रहे हैं, उन लोगों को भी थोड़ा फायदा हो। Yeah, Actually, I what I'm about to definitely agree. talk, actually, what I'm about to say right now, I think it is something that every teenage writer on Quora has faced it once in their life if they have continued writing for a certain period of time. And to ask this question too, I would like to ask this to Anshika because she has been writing for how long, Anshika? Since 2016 Yeah, so onwards. Mm. that's a pretty much long time. I think I didn't even had heard about this Quora thing until back then. तो तेरे को काफी I टाइम हो heard गया it है. because of my elder brother. He introduced me to Quora. क्या तो जैसे आप जब लिखना स्टार्ट करते हो, जैसे काफी सारे लोग टीनेज राइटर्स वगैरह लिखना स्टार्ट करते हैं कोरा पे, देन दिस पर्टिकुलर थिंग हैज फेस्ड बाय एवरी राइटर देयर, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग कि जब आप कुछ मेच्योरिटी वगैरह या फिर दिस इज समथिंग दैट एनी लाइफ प्रॉब्लम दैट यू आर डीलिंग विद और समथिंग दैट यू हैव कॉन्कर्ड इन पास्ट इन लाइफ और फेलियर्स और सक्सेस, व्हेन यू स्टार्ट टू टॉक अबाउट that in Quora, so many people come and try to tell you that you are not really that mature enough, or you haven't really seen much of life, basically. So you're not eligible to write on this topic. Ranshika, you and I have faced this as a writer, और काफी सारे रीडर्स को भी पता है, लाइक तो, और जब मैं तो या फिर जो भी राइटर इसके बारे में लिखते हैं, तो उनको पता रहता है क्योंकि बिकॉज वी हैव फेस दिस, जो पीछे से आगे से जज नहीं पता कि वेयर वट वी हैव कम थ्रू, और जो रीडर्स वगैरह वो रिलेट भी करते हैं इस चीज़ों पे कि हाँ, लाइक आई फील यू देयर. सो व्हेन पीपल एंड टेक्स्ट यू, व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग लाइक दैट, पीपल टेक्स्ट यू एंड टेल यू कि हाँ भाई ब्रो, वट एवर यू रोट इन दैट आंसर इज वेरी रिलेटेबल टू मी, एंड आई थिंक इट गेट्स बेटर आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम. आई हैव कॉन्कर्ड दिस टू द वे तिक्षा दी वाज सेइंग, और काफ़ी सारे लोग भी ऐसा आपको बताते हैं. तो लास्ट मीटअप में इसके बारे में बात भी हो रही थी अंशिका, लेकिन बट वी हैड टू स्टॉप बिकॉज देयर वर सो मेनी पीपल, बेटर पीपल देयर. तो आई थिंक इट इज द बेस्ट टाइम टू टॉक अबाउट दिस. व्हाट से? हाँ, आई फील वो तो यार पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोशल मीडिया, राइट? तो मैं मतलब ओपिनियंस तो है ही, और सही बात है, लाइक आई हैव कॉन्ट्रडिक्टेड माई सेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम्स, बिकॉज देखो, व्यू तो इवॉल्व ही होते हैं। इफ यू आर अ फंक्शनल ह्यूमन बीइंग तो तुम सीखते ही रहते हो कभी, तो आई थिंक इट्स ह्यूमन टू कॉन्ट्रडिक्ट योर सेल्फ मोस्ट ऑफ द इन मोस्ट ऑफ द केसेस, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। और ठीक है, मतलब हाँ, मेरे को भी वैसे कमेंट्स आए हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मतलब वो भी सही है अपने जगह पे, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट वो हमसे रिलेट नहीं कर सकते, जो बड़े लोग हैं या फिर हु आर नॉट इन आवर शूज, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ ओपिनियंस और वो प्रेजेंट करते हैं। तो द ओनली thing you learn along with time is that you have got to grow a thick skin, और थोड़ा सा इग्नोर कर दो और लिखते रहो, मतलब सीख लो, कंस्ट्रक्टिव टेक इन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड इग्नोर द रेस्ट। I say बट something like, कितने लोग जैसे लिखना बंद भी कर देते हैं कि लाइक वो, यू स्टार्ट टू क्वेश्चन योरसेल्फ, हैव यू डन दिस अंशिका, की लाइक अच्छा क्या, लाइक अरे एम यार, आई रियली लॉट ऑफ नॉट टाइम्स, हाँ लाइक. लॉट ऑफ टाइम्स, एवरी डे। मतलब जब भी वो होता है, थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन इम्पॉर्टेंट है यार, मतलब ऐसे अपने बबल में रहोगे तो थोड़े ना कुछ, मतलब वो ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो वो देखना पड़ता है कि हाँ, क्या ये जो बोल रहा है वो सही है। और अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव फेल्ट कि हाँ, मतलब मे बी आई एम नॉट दैट एलिजिबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो मैं डिलीट कर देती हूँ अपने आंसर्स। लाइक आई हैव बिन ऑन अ डिलीटिंग स्प्री अ लॉट ऑफ टाइम्स कि 5-6 आंसर्स एक साथ डिलीट कर दिए,
एक बार मैंने 100 आंसर्स अपने एक साथ डिलीट कर दिए थे। तो मतलब ऐसा होता रहता है मेरे साथ। वो 100 आंसर्स एट a single time. हाँ, they were all trash to be very honest. For you, पता कितने सारे लोग मैं कितनी बार देता हूँ कि भाई people had somebody ever texted you because you deleted a particular answer and they were just trying to revisit there and they couldn't find it and they texted you कि भाई हाँ, delete हाँ, क्यों फिर किया. थोड़ा थोड़ी देर के लिए अनडिलीट कर देती हूँ, फिर डिलीट कर देती हूँ। अच्छा Manu, you also talk about life situation and things related to that. How do you feel about it? Have you received such criticism also? Yes, I have. I have. There was a guy who was 25 or 26 years old and said कि 19 अभी एज नहीं है ज़्यादा जानने की. सो हमने तो कभी बोला ही नहीं था कि हम 26 साल से ज़्यादा जान रहे हैं. देखो, ये फुलिश होगा है कि तुम अगर कहते हो कि तुम ज़्यादा नहीं जानते. वो तो सिंपल सी बात है ना भाई. एक 19 साल का लड़का एक 60 साल 65 साल वाले से ज़्यादा कैसे जान लेगा. लेकिन इस चीज़ को तुम ये देख सकते हो ना कि 19 साल वाला 19 साल वालों से तो ज़्यादा जान सकता है ना. आई एम नॉट सेइंग कि हम जानते हैं, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि 19 साल तक की लाइफ हमने अच्छी देख ली हो. अब आगे क्या आएगा वो तो सिंपल सी बात है ना. क्योंकि अगर तुम ये मान के चलते हो कि तुमने लाइफ कम देखी, तो भाई किसी ने भी लाइफ ज़्यादा नहीं देखी. कोई ना कोई तो यहाँ पे रहेगा ही ना. अब 60 साल वाले से ज़्यादा 100 साल वाले ने देख लिया होगा, तो तुम कुछ कह नहीं सकते. तो कंपैरिजन इस तरह नहीं करना चाहिए. हो सकता है भाई तुम भी हो, जैसे अगर तुम, जैसे अंशिका ने बोला, हमारे साथ वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं था. खाली कमेंट में इस तरह आए थे, क्योंकि फिर हमने कुछ बोला नहीं, क्या कर सकते हैं. लेकिन तुम देख सकते हो कि 19 साल के हो, अगर 19 साल के हो तुम और कुछ लिख रहे हो, तो फिर सही है भाई, ठीक है तुम लिखो ना. तो फिर तुम 19 साल वालों से तो ज़्यादा जान सकते हो, ये तो हो सकता है ना. और कई बार होता भी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. वो कंपैरिजन तो वो लोग ऐसे ही करते हैं क्योंकि दे हैव नथिंग टू से. तो they need something to overshadow their bullshit. That's all. And also, I feel like a lot of times we write our observations regarding जो भी इंसिडेंट होते हैं या फिर बड़े लोगों को देख के कुछ सीख लिया तो वो लिख देते हैं. तो उसमें तो हमारा परसेप्शन नहीं है ना, दैट इज सोली व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड अस. तो उसमें भी क्रिटिसाइज करना दैट इज अ बिट अनफेयर, क्योंकि वो ओपिनियन है और ऑब्जर्वेशन है. तो या दैट्स व्हाट आई फील. अच्छा, हाँ, दूसरों को देख करके जो लिख देते हैं ना, तो उससे होता है मेरे साथ. तो अभी अभी इधर बीच से कुछ काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि मनु भैया, लगता है आप थोड़ा डिप्रेशन में थे, या फिर आपने कुछ हार्ट ब्रेक अपनी लाइफ में लिए, या फिर हो सकता है हमने ऐसा नहीं किया था. हमने सीखे हैं दूसरों से, तो उनको लिखा है. तो अभी इधर बीच काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं. अभी इधर बीच बहुत कमेंट आ रहे हैं, मतलब एक दो दिन में एक लोग आ ही जाता है, कमेंट करता है. तो फिर अरे, एक ने तो बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया था मैसेज कि भाई तुम्हें लगता है कि तुम डिप्रेस्ड थे, तुम डिप्रेशन से बाहर निकले हो, ये वो उसने मतलब मैसेज कर दिया था काफ़ी लंबा. फिर हम इग्नोर कर दिए, अब क्या करें. तो उस तरह में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ठीक है, दूसरों से सीख करके भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. And also the way पता है starting में मेरे को ऐसा criticism लगता था ना, sorry for that. It is Diwali already here, by the way. Anyway, तो स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा क्रिटिसिज्म मिलता था व्हेन आई यूज्ड टू राइट बैक देन. तो वहाँ पे आई यूज्ड टू थिंक कि हाँ भाई द पर्सन इज व्हाट ही इज सेइंग इट इज टोटली राइट. आई एम नॉट दैट ओल्ड एंड आई डोंट रियली नो much about life yet, so I should probably delete this answer or should not really think that way. But after a point of time I realized कि I don't think the way he's criticizing me it is very right either, because like I can be wrong about a line or two, or perhaps a paragraph, or even my entire answer. But the way you present your views to me, I think that's what matters a lot. It does not matter what you are doing. You are just criticizing me, and I totally get that. But the way you are doing, I think that is the most. That is something that everything gets to determine, because जब वो मेरे को अगर like if you're just telling me that you should not walk, just shut yourself out, then I think ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा. The way if you want to guide someone and show them way. लेकिन अगर तुम इस तरीके से देखो कि ब्रो द वे यू आर वॉकिंग इट इज नॉट राइट एंड यू नीड टू वॉक इन दैट काइंड ऑफ डायरेक्शन, आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर यू दैट वे. तब जाके आपको समझ में आता है कि द अदर पर्सन डज नॉट वांट यू टू स्टॉप ग्रोइंग, ही जस्ट वांट्स यू टू ग्रो इन अ बेटर वे. तो वहां पे आपको वो जो उस टाइप के लोग होंगे ना, यू नीड टू फिल्टर दैट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम एवरीथिंग. ओनली देन यू विल ग्रो, अदरवाइज ऑल ऑफ द बुलशिट दैट पीपल थ्रो एट यू इट विल शट यू इनसाइड आउट. आप फिर अपने आप में भी सोचोगे, पता है वो जो वॉइसेस होती है ना जो आपको कमेंट सेक्शन में मिलती है या इनबॉक्सेस मिलती है, जो आपको कहती है कि आप इधर मैच्योर नहीं हो, यू शुड नॉट राइट अबाउट दैट, ये आपके साथ रह जाती हैं. कि जब आप लाइफ में खुद भी कोई डिसीजन बनाने लगते हो ना, तो आपके मन में एक गूंजने लगता है कि यार am I really that mature enough, am I really that good enough to make this kind of decision. तो अंशिका, have you faced this? अरे वो आई थिंक
टाइम के साथ ना सेलेक्टिव फ़िल्टरिंग अपने आप होने लगती है माइंड में कि ठीक है, ये डस्टबिन में डालो एंड एक्सेप्ट दिस, ये सही है एंड इग्नोर दिस। तो वो आई थिंक सबके साथ ही होता है। और इवन अगर कोई 60 ईयर ओल्ड नया नया सोशल मीडिया पे आए ना, तो उनको भी अगर क्रिटिसिज्म मिलेंगी, उनका भी यही ग्रोथ ट्रैजेक्टरी होगा। उनको भी पहले प्रॉब्लम होगी कि मतलब व्हाई आर यू राइटिंग अबाउट ऑल दिस। फिर वो भी धीरे धीरे सीखेंगे कि हाँ, मतलब दिस इज वर्थ पेइंग अटेंशन टू एंड दिस इज गुड टू इग्नोर। तो वो आई थिंक सबके साथ ही होता है, नो मैटर व्हाट योर एज इज। Yeah, the growth is everlasting. Like it is not like 25 is the boundary or 30 is the boundary. Like after that point of time, you will be totally mature, and all of the decisions that you make in your life from this point on will be very nice, and all of them will reward you in future. It does not work like that. Everybody is growing until they die. हाँ, ट्रू। तो इस अगर जब when people start to accept that ना, तो they realize कि भाई everybody around them is growing, doesn't matter it is offline or online. तो वहाँ पर वो जो criticism देते हैं तो वो एक constructive way में होता है, because like grow and let others grow. And that too, that what people say online hurts offline too. So people should just take care of what they speak. Yeah, and now that you have Abhinav also here. Hi Bhavna. Hello, how are you? Yeah, Abhinav, हिंदी में your ही बोल voice. आस्क्ड यू हाउ आर यू, आंसर तो दे दे थोड़ा। हाँ मैं ठीक हूँ यार मतलब बढ़िया चल रहा है सब हाँ Abhinav, like you talked about language thing. You can talk in any whichever language you want. There is no really foundation here. ठीक. तो क्या बोल अभी तो लाइक अभी नया नया है ना पूछना तो यार। Yeah. I was just waiting for a response anyway. Yeah, Abhinav, are you new to this clubhouse thing? हाँ हाँ मतलब मैं नया ही हूँ सुन लेता हूँ लोगों को बोलता नहीं हूँ अभी नो आंसर्स में ब्लास्ट होता है बस। अरे यार क्या ही बोलूँ अच्छा, Abhinav, what is your age? 19 अभी 27 नवंबर को 20 बढ़िया, तो I think we are the same, and then I will not call you up. Works? हाँ ठीक ठीक Yeah. तो अभिनव ये बता कि जैसे how would you represent your content when you, like there are so many people here, how would you talk about your content, what do you exactly write about? यार जो मन में आता है लिख देते हैं हमारा कोई ऐसा मतलब पर्टिकुलर फील्ड है नहीं कभी सोशल इश्यूज कभी कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस चलता रहता है सब कुछ तो criticism जो मिलता है तेरे को, how do you deal with it? यार अब जितनी में उतनी बातें तो चल लेते हैं सह लेंगे थोड़ा ये भी सही है। अच्छा वैसे अगर तू ये भी फिल्टर आउट करता हुआ कि जो अब जितना भी सारा हेट आ रहा है, जितना भी क्रिटिसिज्म आ रहा है, तो यू डू नॉट रियली इग्नोर ऑल ऑफ दैट, है ना? थोड़ा बहुत तो लाइक यू फील लाइक वो फिल्टर आउट कैसे करते हो? हाउ वुड यू ड्रॉ द लाइन बिटवीन द टू? मतलब समझ में आ जाता है एकदम जैसे कोई कमेंट अगर कोई है मतलब कुछ भी तो वो समझ में आ जाता है अगर थोड़ा अच्छा लग रहा है कंस्ट्रक्टिव वे में लग रहा है कि हाँ ये मतलब सही है मतलब अच्छी चीज बोल रहा है मतलब जैसे कि कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो गए तो वो तो चलते रहते हैं उसको मैं शुक्रिया ही बोलता हूँ कि भैया थैंक यू आपने बता दिया हमको और फिर अगर वैसे कोई सरकास्टिक वे में बोलता है तो हम भी कभी कभी रिप्लाई दे देते हैं कभी कभी छोड़ देते हैं इट इज वेरी चिल विद यू, हाँ? हाँ मतलब चिल ही है सॉर्टेड। हाँ सॉर्टेड हाँ, बढ़िया, ये बढ़िया, लाइक यू दिस माइंडसेट इज वेरी नीडेड ऑन कोरा, वरना कितने लोग रात को रोने लगते हैं यार मेरे को इंटरनेट बस बंदे ने ये बोल दिया एंड नाउ आई एम नॉट गुड इनफ। हाँ नहीं करना चाहिए यार मतलब लोग तो बोलेंगे ही, हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं यार देखो, एक कमेंट या एक मैसेज के वजह से अगर तुम अपनी सेल्फ एस्टीम को डाउट करने लगो, तो तुम्हें थोड़ा अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एस्टीम, और वो थोड़े टाइम के बाद सही हो जाता है। हाँ मतलब सही कह रही हूँ
हाँ थोड़ा बहुत लगे व्हेन यू गेट इट आउट इन द रियल वर्ल्ड देन यू रियलाइज कि जब अपनी रियल वैल्यू पता चलती है, पता है कितनी बार ऐसा होता है कि you see somebody doing one thing and then you look at it and then you realize कि भाई ये तो मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, like I'm way better at it than him and I think I can do better. फिर जब भी when you actually get into that thing and you start doing it, then you realize कि bro you are not actually that good enough and you need to back off and you need to learn more. That person was actually way better. तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं जब आपकी सेल्फ एस्टीम वगैरह आपको एक्चुअली आप अपना असेस करना अच्छे से ट्राई करते हो जब आपके पास मैट्रिक्स और क्राइटेरिया अच्छा हो। वो क्राइटेरिया आपको तभी मिलेगा जब आप एक्चुअली फील्ड में हो, लाइक फील्ड नॉट एज एन यू नीड टू गेट इनटू सम काइंड ऑफ बिजनेस बट एज इन लाइफ जब आप काफी लोगों के बीच में होगे ना देन यू विल बी एबल टू बेटर वो एस्टिमेट योर वर्थ। सो अच्छा भावना, यू देयर? Yep. या तो अच्छा जैसे तेरा मैंने वो पढ़ा था, तेरे जो बेसिकली आंसर रोज होते हैं उसमें वो काफी ज्यादा लाइक वो इस टाइप के होता है कि मैं अगर खुद भी आंसर करूँ तो मेरे को लगेगा कि भाई आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गिव दिस काइंड ऑफ एडवाइस। डू यू एवर फील लाइक, मैंने से पढ़ा था कि अगर कोई ऐसे बेसिकली द क्वेश्चन इज अबाउट एक चीटिंग सेकंड एक सेकंड या हाँ बोल हाँ, इज इट बेटर नाउ? नहीं एक्चुअली मेरी फ्रेंड थी ओके अच्छा मैं कौन थी बोली या तो जैसे मैंने तेरे आंसर्स वगैरह पढ़े थे तो वहाँ क्वेश्चंस वगैरह जो होते थे उसमें तो इट इज़ लाइक कि कोई हस्बैंड वगैरह चीट कर रहा है वाइफ पे एंड हाउ व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस वुड यू गिव, या फिर कोई चाइल्ड राइट अब्यूज है या फिर कोई मेंटल हेल्थ जो तुमको बैक इन योर चाइल्डहुड हुआ था एंड नाउ इट इज राइट राइट ट्रबलिंग यू अगेन। तो राइट तेरे को क्रिटिसिज्म वगैरह मिलता होगा ना कि लाइक पीपल वुड बी टेलिंग यू कि आई एम नॉट श्योर दैट एडवाइस इज वेरी राइट और नॉट, लाइक आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट बिकॉज आई हैव नॉट रियली गॉन थ्रू दैट और मेरे को नहीं पता किस टाइप का वो कैसे चलता है बेसिकली, बट पीपल मस्ट बी टेलिंग यू ना कि भाई सी कि या गो ऑन, यू गेट माय क्वेश्चन बेसिकली या या आई एम गेटिंग इट सी अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि किसी ने मुझे ऐसे बोला हो बट एक दो बार ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि समबडी सेइंग कि दिस शुड नॉट बी द राइट आंसर और दिस शुड नॉट बी द राइट एडवाइस तो उस चीज़ को मैं कंसीडरेशन में लेती हूँ और फिर मैं ट्राई करती हूँ कि उस टाइप के आंसर्स ना दूँ अगर मैं उसके लिए एलिजिबल ना हूँ बट समटाइम्स यू नो आई कैन फील कि ऐसी सिचुएशन में अगर मैं होती तो मैं उस टाइम पे क्या करती तो मोस्टली ऐसे जो एडवाइस के लिए आंसर्स मांग रहे होते हैं दे आर लुकिंग फॉर अ पर्सपेक्टिव कि एक व्यू पॉइंट मिल जाए इस चीज़ को देखने के लिए सो मैं बस अपना एडअप कर देती हूँ कि मैं अगर वहाँ पे होती तो मैं इस चीज़ को ऐसे करती मोस्टली मैं एडवाइस जब करती हूँ तो मैं सजेशन देती हूँ कि इट इज़ अप टू यू कि तुम्हें क्या करना है बट यू कैन कीप दिस इन टू कंसिडरेशन कि ऐसा होता तो ऐसा मैं करती तो मोस्टली तो यही होता है बाकी मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि अगर किसी को सही नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारी एडवाइसेस होंगी तो डेफिनेटली not all of them are going to be suitable for them. तो जो उनका लाइक काफी सारे एडवाइसेस होती है वो Yeah, उनके if जो भी they उनके think that it's useful, they can use it. Otherwise, free advices तो आ ही रहे हैं, ignore करो. या तो मतलब जो वट एवर मेक सेंस टू यू गो विद इट अदरवाइज यू Yes, डोंट रियली हैव exactly, टू। exactly. तो यू हैव ग्रोन थ्रू क्रिटिसिज्म हाँ, कि अगर तेरे को मिला कि लाइक हाँ आई कुड रियली इम्प्रूव ऑन दिस, लाइक ये Yep, बंदा सही कर रहा है तो right. वहाँ से द वे Diksha दी वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर की द वे यू लुक एट योर प्रॉब्लम्स बेटर, जैसे उन्होंने अपना जो नाउ दैट शी हैज क्विट हर वो नीट वाली प्रिपरेशन, नाउ दैट शी लुक्स बैक टू दोज इयर्स उनको पता चलता है कि लाइक इट वाज रियली इट हेल्प्ड देम बेसिकली, इट हेल्प्ड देम बेसिकली द वे हर रिलेटिव्स आर टेलिंग हर कि लाइक इट वाज नॉट द बेस्ट काइंड ऑफ डिसीजन दैट शी हैज मेड बट स्टिल Right. इट इज हेल्पिंग देम नाउ। हाय अविक, अविक यू देयर? Guess not. I guess not. Anyway, कंटिन्यू कर ले yeah. Abhik, are you there? अभी बोल रहा है बट लाइक आवाज नहीं आ रही उसकी। Can you hear me? Yeah, we can hear you, but your voice is buffering and but it is not really clear. अभी Oh, लीव okay. करके फिर से I वापस आओ have तो आ a जाएगा। bad internet connection. या नाउ इट्स ऑल राइट अभी आ रहा है तो मत। अभी आ रहा है ठीक है। अच्छा अभी पहले मैंने कुछ टाइम पहले देखा था कि अलीशा हनन ने तेरे को शाउट आउट दिया था।
फिर वहाँ से I got to know हाँ about you. फिर वहाँ से I started reading about your content and that was like very very mature, or like the way you present it, ways it seems very nice and inspiring to me. So, but how do you deal with the criticism that you get? like you know, criticism can be taken in two ways. You either give the like you take the criticism for your own improvement. You try to improve yourself in like the aspects that the people have pointed out, the aspects that people think that you are lacking behind. And see, haters are different and criticizers are different. Criticizers help you improve. Haters haters like they are like they destroy your mental health. So haters एक साइड में रखो, haters को ignore करो, and criticizers who actually want your content to improve, हमें उनसे lessons लेके हमें अपना improvement, अपना content improve करना चाहिए. I do that, and that's it. और not much experience, but जितना है उतना है, और like that, it's like that. So the way you look at your problem matters. अब पता है, I'm amazed to see so many mature response from all of you here. Like कितने लोग होते हैं वो they are like कि भाई अब like मेरे कि पता है कोरा पे you get to see that the teenage community in Quora who is not that पता नहीं इनको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, but they start forming groups and people like तुम जब उनके आंसर्स कभी मतलब मैंने भी नोटिस किया है यार, कार्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, देन दे कीप मेंशनिंग ईच अदर. मतलब ठीक है एक दो बार करो, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट इट रियली गेट्स रेपिटेटिव, और नहीं आप नहीं कितने अंशिका, लोगों को म्यूट करोगे. जब भी हम राइट. लोग का ये मेंशन वाला आया था तो वी आल्सो यूज्ड टू डू दिस, कि मतलब तभी प्रकृति नहीं दिखती नहीं, थी हम तो करते आंसर्स थे। के थ्रू करते थे हाँ, ना, वो स्पेसेस बना के, और फिर स्पेसेस का उनका वो तो ठीक चलता रहता है. है, वो तो अलग चीज है, बट अभी ये क्वेश्चन आते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर राइटर, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड हाँ यू डोंट हैव वही एनी फकिंग वही यार. आइडिया अबाउट whom you are मतलब talking. तो आई ये बहुत फाइंड दैट काइंड वेरी इरिटेटिंग एक्चुअली. मतलब ठीक है, हो गया. अच्छा, देयर इज दिस ग्रुप ऑफ, मतलब कि एक दो लोग हैं, तो व्हाट आई डू, तो दे कीप आस्किंग मी कि क्या करना है क्या करना है, तो मैं थोड़ा मुंहफट हूँ, लाइक इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज बॉदरिंग मी, आई विल डायरेक्टली से टू यू, तुम्हें बुरा लगे अच्छा, आई विल से. तो वो लोग एक बहुत दिन से कर रहे थे और मुझे इन लोगों ने मतलब रिक्वेस्ट किया, तो आई सेड कि देखो, मतलब लाइक मुझे आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम कर देंगे, बट इससे क्या, ये क्या चूतियापा तुम लोग करते हो, इससे क्या तुम लोग को मिल जाएगा, अगर तुम्हें उससे करना है तो जाके उसको गेम खेल लो, वैसे भी कर सकते हैं. एंड देखो मतलब उन लोगों ने खुद ये की समझी बात. देखो खुद की मर्जी से करो तो ठीक है, बट व्हाट इज दिस गेम जिसमें आप एक दूसरे को रिक्वेस्ट करते रहते हो, फिर मतलब मैसेज, प्राइवेट मैसेजिंग के थ्रू कर लो ना, मतलब फीड में क्यों. वही, कि भाई अगर तेरे को कुछ सही में पूछना तो लाइक जस्ट रिंग हर अप एंड लाइक जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछ ले वो आंसर कर देंगे ऑन योर फेस. बट वो क्या करेंगे हाँ पता है, उनके क्वेश्चन पे लाइक दे आर लिटरली आउट ऑफ द वर्ल्ड. लाइक आई सॉ दिस वन क्वेश्चन इन माय फीड एंड इट वाज सेइंग कि वो डू यू थिंक दिस पर्टिकुलर कोरन, यहाँ पे नाम 10 का, वुड नॉट नेम हर, तो डू यू थिंक दिस पर्टिकुलर कोरन also breathes the same air as you. यार ट्रोल क्वेश्चंस यार कैसे होते हैं. और उस पर उसने 4-5 पैराग्राफ का आंसर भी लिखा हुआ है, वो पूरा सार्कस्म वगैरह एक्सप्लेन कर रही है. तो पता है, ये काफी चाइल्डिश लगता है मेरे को. लाइक तुम अभी टीनेज में ही हो, मतलब तुम लाइक पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था. उनके आंसर देखोगे 14 वोट होंगे, कमेंट 53 होंगे, वो कमेंट में स्टार्ट हो जाता है, कमेंट में ऐसा स्टार्ट हो जाता है. स्पैम समझ, वहाँ करते पे हैं. पार्टी चल रही है, नहीं. और उनका पूरा पता है, वो खुद तो डिवाइड ऑलरेडी होते हैं. लाइक वो 2-3 काफी सारे टीनेज ग्रुप्स होते हैं, तो वो आपस में उनको पता होता है कि लाइक व्हाट टीनेज ग्रुप आर यू फ्रेंड्स विद. तुम या तो वो सब तुम एक साथ के दोस्त हो, या फिर तुम में से कोई भी उनका दोस्त नहीं है. इट इज लाइक दैट. वो बिल्कुल एक बेसिकली इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी, जस्ट अ बंच ऑफ स्टूपिड किड्स. हाँ देखो यार, हम लोगों ने भी मतलब ऐसे क्रिंजी हरकतें की है, पर इतने लेवल पे नहीं. और नहीं, मतलब आई इतना नो स्कोप. लुकिंग डाउन इज नॉट दैट गुड, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा ही मतलब हो जाता है, तो या. पता है सचिन, आई हैव सीन some people wishing their friend Koran happy birthday. Bro, वो
उस कोरन को हम जानते भी नहीं थे, और उसके बाद जब वो बर्थडे पे आया ना भाई, उस पे इतना भसड़ मचा रखी थी नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या बताएं। तो पता है, अच्छा ये ग्रुप जो होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं तुम्हारी ग्रोथ के लिए। हमने देखा है कि काफ़ी ग्रुप थे जो बढ़ गए, आज 1-1 हज़ार 1,500 फॉलोअर्स पे हैं। लेकिन पता है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यू गेट बोर्ड ऑफ दिस एंड यू वांट टू ग्रो अलोन, सो यू स्टार्ट अनफॉलोइंग पीपल। और व्हेन यू स्टार्ट अनफॉलोइंग पीपल, तो वो बुरा मान जाते हैं। तो हमने कई बार देखा ऐसे कि उसमें फिर क्वेश्चन पलट के आया कि वाई यू आर अनफॉलोइंग योर फ्रेंड्स ऑन कोरा। So he just said कि I want to grow alone and I want to write some good questions. So it's a good thing for growth, लेकिन later on you realize कि you need to move on alone. ये वर्क नहीं करती ना फिर धीरे धीरे। अब तुम 1,500 पे आते हो तो बुद्धि भी खुल जाती होगी मेरे ख्याल से, तो इस वजह से हो जाता है। और ये सही नहीं रहता भाई। अच्छा पता है, ये लोग शाउट आउट भी देते रहते हैं एक दूसरे को। आई डोंट थिंक कि किसी को शाउट आउट मिलना चाहिए, भले ही वो डिजर्विंग राइटर हो क्यों ना हो। हमने आज तक किसी को नहीं दिया। हम जानते हैं कई लोग को जो अच्छा लिखते हैं, सेम विद मी, लाइक लेकिन मैंने हमने किसी दिया को नहीं नहीं दिया, किसी मैं को। पर्सनली जाके उसको बोल दिया। नहीं, क्यों? मैंने दिया है 1-2 आंसर में दिया है, और आई डोंट रियली रिग्रेट इट, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे नहीं नहीं, फॉलोअर हम वगैरह के लोगों लिए ने भी नहीं दिया, बट दिया। लाइक एक आंसर, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है उस बंदे के लिए ऐसे करके मैंने कभी नहीं किया। इवन शुभम भैया से एक बार आया था, लाइक टॉकिंग मतलब कंपैरिजन था मेरा उनका, तो उन्होंने आंसर ही दिया। मैंने कहा भैया आप इसी समय उसको डिलीट कर दो। ये बहुत गलत लगता है। ऐसा लगता है ना कि लाइक यू आर डाइंग फॉर द व्यूज सपोर्ट्स इन सब चीज़ों के लिए। अरे ब्रो, ये नेपोटिज्म है एक टाइप का। हम नहीं करते क्योंकि फिर मेरे फॉलोअर्स जाएंगे उसको फॉलो करेंगे, उसको तो क्लाउट मिल गया भाई, फिर बाकी लोग को क्या होगा। इस तरह फिर हम सबको फिर या तो फिर मेंशन करते रहे अपने आंसर्स में, तो हम ये कभी नहीं करते। भले तुम कितना भी अच्छा लिखते हो भाई, हम नहीं कर सकते, सॉरी। इसीलिए हम ये घंटा घंटा क्लाउड मिलता है इनके शाउटआउट पे 57 व्यूज आते हैं। नहीं नहीं, ऐसा होता है काफ़ी, कई बार देखा है हमने, मतलब लोगों को ग्रो होते हुए। मतलब क्या होता है फिर 10-15 अगर लोग फिर चले गए ना तुम्हारे पास, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है अगर 10-15 भी आ गए। ठीक है, तो इस वजह से हम नहीं करते हाँ क्योंकि सचिन, तो बहुत दिस मेरे इज सामने हुआ है रियली ऐसा। नॉट, मतलब इनको कम मत समझो। वो लोग आतंक ला सकते हैं दुनिया में वो कोहरा पे। अच्छा, मैंने तो 2-3 लोग देखे थे क्या कहते हैं वैसे ग्रुप वगैरह बना के, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर कोरन, या फिर इसके बारे में क्या सोचते हो। तो आपस में वो कमेंट में ये सब खेल रहे होते हैं। मेरे को लगा ये क्या बचकानी हरकत है, लगी पर्सनल में क्लैट तुम्हारे डिस्कॉर्ड वगैरह बनाए तो हैं। थिंक अबाउट कोरा नहीं आई भाई, थिंक उसमें हु आर सम अनडिजर्विंग कोरा राइटर्स, इस पे लिख करके जो आंसर डालते हैं, हाँ, एक दिस एक वाज को टैग वेरी करते पॉपुलर हैं। क्वेश्चन बाय माय टाइम में, तो 2018-19 में क्वेश्चन बहुत ज्यादा वो था। तो वो अच्छा, जैसे तुमने बोला वो द अनडिजर्विंग राइटर्स एंड कोरा, तो ये क्वेश्चन फिर वहां पे तुम उनके आंसर लिखोगे जो तुमको लगता है कि जैसे द राइटर्स लाइक अभिक डिड नॉट रियली हैव मच फॉलोइंग बैक देन, लाइक ही स्टिल हैज अबाउट 1000 फॉलोअर्स नाउ, बट स्टार्टिंग में जब मैंने देखा था अलीशा हनन ने भी उनको शाउट आउट दिया था, इसको शाउट आउट दिया था, और स्टार्टिंग में इसके फॉलोअर्स नहीं थे। या फिर देयर वाज दिस राइटर कॉल्ड अतिशय गुप्ता, हाँ, हाँ, आई दे रिमेंबर हाँ, हिम। है ना। पीछे स्टोरीज़ गुप्ता। लिखता था काफ़ी सही। या ही वाज रियली गुड। तो अगर तुम उन जैसे लोगों के आंसर, उन जैसे कुछ लोगों को मेंशन करोगे ना आंसर में, तो समझ में भी आता है। अब तुम उन लोगों के वो उनको हु आर द अनडिजर्विंग राइटर्स उन गोरा, उस क्वेश्चन में तुम आंसर कर रहे हो, जो बंदे जो क्वेश्चन को आंसर करते हैं, कैन यू लिक द फ्लोर, वो दैट डज नॉट रियली मेक सेंस ना। Whom Sachin is dating, why Sachin and this particular Korean stop talking, why they have divorced, like these type of questions are asked for me और प्रकृति को लेकर। और थैंकफुली हम हाँ, लोग की मुझे बातें याद तभी है, वो होती थी। काफ़ी कुछ हुआ था ना उस टाइम। अरे डोंट टेल, लाइक क्या होता था कि प्रकृति को मैंने पता नहीं कैसे बोला था कि लाइक आई लव दैट मेंशन वाला जब नोटिफिकेशन आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सी स्टार्टेड डूइंग कि कभी कभी वो मेंशन कर देती थी, उसके आंसर्स ही वो ऐसे बना देती थी, विच वाज वेरी क्यूट ऑफ हर। और वो चीजें होने लगी, फिर हम लोग की बातें मतलब कि लाइक होती थी, वी यूज्ड टू टॉक कि अच्छा हाँ क्या चल रहा है ऐसे करके, तो नॉर्मल जैसे फ्रेंड्स बात करते कॉलिंग पे एंड करके। और पता नहीं उसका क्या हो गया अभी उस टाइम पे, लाइक आई वाज इन माय इनिशियल करके, तो सब इधर से एक तो ये चल रहा था कि लाइक हाँ ये लोग डेट कर रहे हैं। फिर उधर से एक जगह पे चल रहा है कि लाइक हम ही दोनों एनोनिमसली ये क्वेश्चन कर रहे हैं, और देखिए ये चाहते हैं कि हाँ हम लोग का कुछ क्रिएट हो, क्योंकि दिव्यांश भैया और अंकिता दीदी का भी उधर वो पॉपुलर वालों का चलता था, ये हम लोग का इधर ये चल रहा था। अरे आदित्य भैया, अभी जो अंकिता को बुलाया था ना मैंने लास्ट वाले मीटअप में, तो हाँ, क्या उसके कमेंट में भी अब था यार एक। क्या कहते हैं, सॉरी यार, तो वापस सत्यम भैया को जानते हो ना। हाँ, हाँ, हाँ।
Why, like, should I mention this? I think he made a comment publicly, so it is okay to do so. So basically, like, अब मैंने अंकिता को बुलाया तो वो उसने उन्होंने कमेंट में लिखा कि अब देवांश को भी बुलाओ ना. अच्छा ये पता है मसाला टाइप बहुत चलता है. पॉपुलर था चीज। मतलब हाँ. अंकिता और क्या कहते हैं इनका जो मतलब हम लोग शिप सभी लोग शिप कर रहे थे बिकॉज यही इनका आंसर्स नॉर्मल भी यही तो था लिखे कि थे ना एक दूसरे के लिए, मतलब हाँ एक दो लाइक यार हाँ क्या हाँ. कमेंट बातें करते कर थे रहे हैं ऐसे यार, ये करके सब रिकॉर्ड हो रहा है। अरे यार Alright. पता है सचिन अभी ठीक है आप. अभी मैंने क्या हुआ कट कर प्रकृति देना को यार। बोला कि मैंने प्रकृति को बोला कि तू आ जा मतलब कि सभी आ रहे हैं तो शी हैज स्टॉप राइटिंग एंड प्रकृति बहुत अच्छा लिखती थी अगर किसी को याद हो तो शी सेड कि नहीं भाई मुझे नहीं आना मेरी अच्छी खासी एक जिंदगी चले लेगी शी इज डेटिंग करके तो मैंने कहा चल अच्छा पता है इन सब चीज़ को प्राइवेट रखना चाहिए जितना हो सके, बताना नहीं चाहिए कि हैव यू एवर मेट समवन ऑन कोरा इन रियल लाइफ, तो इससे क्या होता है ना फिर दिक्कत होती है, प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी चाहिए। अब इतना तुम लिखोगे हम वहाँ पे गए चॉकलेट खाए एक साथ और ये करे, आई एम नॉट सेइंग कि गलत कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें फिर करना चाहिए। अगर तुम इस तरह कर रहे हो फिर ऑब्वियस है भाई मैसेजेस तो आएंगे ना, फिर उस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। नहीं गलत का नहीं मतलब लाइक मेरे साथ क्या है कि लाइक अगर दो लोग या फिर लाइक हम हैं हम अभी तक किसी से भी रियल लाइफ में नहीं मिले कोरा से बट अगर कल को लाइक तुमसे मिले या फिर किसी और से मिले तो आई विल ऑब्वियसली फील कि हाँ देखो मैंने कोरा पे किया था तो आई विल लव टू शेयर इट कि देखो हम लोग मिले थे लाइक हम लोग की ये 3 साल से मनु हम तुम्हें भी जानते हैं अंशिका को भावना दीक्षा को और सचिन तुम सभी को जानते हैं तो लाइक एक बॉन्ड एक क्रिएट हो चुका है तो लाइक हम तो चाहेंगे बट अब दूसरे लोग अगर इसको गलत पोर्ट्रे करने लगे तो फिर वो गलत चीज हो जाएगी ना वहाँ पे उन लोग की नहीं तो गलत एक दो आंसर चलता है ना, फिर बार बार अगर उस तरह फिर हाँ तो करेंगे एक ही फिर आंसर हम एक दो फिर क्यों हम और एक आदित्य बस फिर नहीं हम फिर वो और कमेंट सेक्शन में अलग चलता है ना। नहीं हाँ हाँ, और फिर हम और आदित्य भैया फिर एक साथ केक खाए, फिर आधा उन्होंने खाया आधा हमने खाया, फिर इस तरह के जब आंसर आने लगेंगे अभी तुम एकता कपूर से इंस्पायर हो तो हफ्ते में सो करके सोना तो उसमें मेरी गलती नहीं है ना मैं तो एक ही में पूरा खत्म करूंगा और दिव्यांश भैया और अंकिता को अंकिता वाला देखो तो उनका थोड़ा लाइक सीन हीटेड अप भी था थोड़ा. अब वो बेसिकली अरे जरा जरा से 13-14 साल के बच्चे घर घर खेल रहे हैं कोरा पे. अरे उन लोगों को ये आंसर लिखना ही नहीं था बट वो इतना इन लोगों ने वो कर दिया ना हर जगह उसी के बाद लाइक उनके कमेंट सेक्शन में अगर 150 मैसेज कमेंट्स हैं तो उसमें से 50-60 इसी के बारे में वाई बहुत अंकिता इज स्पैमिंग नॉट हुई थी यार, पोस्टिंग बहुत वाई ज्यादा, अंकिता इज नॉट हद डूइंग से ज्यादा। तब दोनों ने लिखा कोरा पे होता नहीं है ना ये सब, तो थोड़ा लोगों को मजा मिल गया था वहां थोड़ा सा. यार अब तो मजा ही होता है, अब तो अब वही मुझे तो वो है। लगता निकल है गया, टाइम ये निकल गया. ट्विटर से भी पॉपुलर हो क्योंकि उस टाइम पे ये मेंशन वाला फीचर बहुत नया नया था तो सभी जिसको भी मिल रहा है वो मेंशन पे मेंशन किए जा रहा है एंड तभी कोरा एल्गोरिदम वो प्रमोट कर रहा था ना, कुछ भी आंसर हो, रैंडम आंसर को वायरल, कुछ भी रैंडम आंसर लिखो, रैंडम आंसर वायरल। एंड ऑल्सो अगर आपके 1 पॉइंट से ज़्यादा फॉलोअर्स है सो यू गेट अवे विथ दीज थिंग्स, लेकिन अगर आपके कम फॉलोअर्स है तो आपको ज़्यादा अनसपोर्टिव और वो मिलेंगे क्रिटिसिज्म वाले मैसेजेस, और कम मिलेंगे सपोर्टिव। और अगर आपके ज़्यादा फॉलोअर्स है तो आपको लोग मतलब ऐसे कर देते हैं कि ठीक है इतने आंसर्स तो यूजफुल है, ये एक दो कर रहे हैं तो यूजलेस अच्छा ही आंसर लिख लिया तो ठीक ही है। अनदर मतलब थिंकिंग अगर ये कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं लाइक इसमें भी कुछ पॉजिटिव होगा विच इज वेरी रॉन्ग अगर आपने लाइक आई रिमेंबर कि मैंने एक आंसर लिखा था विच वाज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन सो उसकी एक फॉलोअर थी तो शी टेक्स्टेड मी कि लाइक आई मुझे ये लाइन बहुत खराब लगी है तो आपको नहीं लिखनी चाहिए बट क्योंकि हम आपको फॉलो करते हैं आपके आंसर बहुत ही अच्छे हैं एंड मेरा उस समय 1500 ऐसे फॉलोअर्स थे तो मैंने उसको यही मैसेज किया कि अगर तुम्हें बुरा लगा तो लाइक यू शुड बी देयर इन द कमेंट बॉक्स और बोलना चाहिए ये चीज ऐसे आके और फिर उसके बाद मैंने ये आंसर भी लिखा था कि डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली सबके अंदर गलत और सही हो सकता है अगर मनु की कुछ बात मुझे अच्छी लगी तो कल को मुझे कुछ बात बुरी भी लगेगी जो हम बोलते भी और मनु सा के साथ मैंने ये दो चीजें की हैं कि लाइक हाँ मैंने कमेंट कर दिया कि मनु ये तुम यहाँ पे गलत हो तो ये चीजें होनी चाहिए एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हम यहाँ पे बूट लिखेंगे या फिर किसी को खुश करने नहीं आए हैं अगर मेरा एक हाँ, पॉइंट मैंने है तो खुद यार बहुत सारे राइटर्स को ब्लॉक किया, और मुझे पता है मुझे बहुत लोगों ने किया होगा, तो वो ठीक है यार, अपने चॉइस के हिसाब से करो। लाइक ये क्या है कि अगर एक आंसर ठीक है, लाइक देर आर राइटर्स जो बहुत अच्छा लिखते थे 2017-18 में, लेकिन अब मैं उनको म्यूट कर चुकी हूँ बिकॉज आई कैन नॉट टॉलरेट देम ऑन माई फीड एनी मोर।
तो वो सब होता है। सत्यम भैया की बात हुई, सत्यम भैया 2018-19 में इतनी अच्छी मतलब के आंसर्स लिखते थे कि क्या बताएं। लाइक अभी भी वो लिखते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो बहुत बुरा लिख रहे हैं अपने करके, लेकिन एक जो चीज़ मुझे सत्यम भैया के लिए पसंद है कि सत्यम भैया, हाँ, ये सत्यम भैया है या फिर सत्यम भैया के आंसर्स हैं, वो जो चार्म है ना वो अभी नहीं है। और मतलब लाइक मैंने सत्यम भैया को ऐसे करके मैसेज भी किया, भैया आपका क्या होगा, तो लाइक ही वाज लाइक कि अभी वो चीज़ें जैसे अंशिका ने बोला कि नहीं रह जाती है, एक सर्टेन एज या फिर टाइम के बाद आप इवॉल्व करते हो, तो वही चीज़ें हैं। अच्छा, ये मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था फ्रॉम टू Diksha, Di, and Anshika. Ki you guys are the ones who have the most followers and you have made it big or very big there. So would you be able to start from zero just in case, like God forbid, but if Quora just bans your ID one day and you realize कि भाई क्या fucked up चीज हुई है, then after sending a lot of curse text to Adam Angelo, what would be your next step? दीक्षा दीदी गो फर्स्ट। Okay. I think I would accept it first of all कि अच्छा ban हो गई मैं, and then I think I can restart. Um, this is a very unexpected question for me. I never actually I'm completely blank. Um, मैं ऐसा नहीं होगी. I won't get crazy. I'll be like okay अच्छा ban हो गई मैं. Then I will of course support team के पास जाऊंगी. I will mail them and also ask me would ask them the reason for banning me, and I think उसके बाद I'll look for it further. That's it. So like you will not freak out of your mind. I won't freak out. No, I actually this is in my character. I don't freak out easily. Okay, that's very तो nice. आई विल फ्रीक आउट क्योंकि वो तो कोबरा इज अ बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ। अभी नहीं उतना, लेकिन पहले तो था। और मेरी ग्रोथ काफ़ी स्लो हुई है, तो मुझे उतना वो इंस्टेंट पॉपुलैरिटी वाला कोई फीलिंग नहीं आया था, बिकॉज आई रीच 1K इन 2019। ठीक है, आराम से 3 साल लिखने के बाद, लाइक ऑन एंड ऑफ, उतना कोई सीरियसली मैं लिखती नहीं थी। और फिर उसके बाद से लाइक थोड़ा ग्रोथ हुआ, और अब तो मुझे अनफॉलो ही करते हैं लोग ज़्यादा, तो अब मुझे वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब तो आई नॉट मतलब रिएक्ट दैट फर्वेंटली, लाइक दैट इमोशनली। लेकिन हाँ, थोड़ा वो तो है कि हाँ, इतनी मेरी रीच थी, अब थोड़ी कम हो गई, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट तो करूँगी, अब पता नहीं वो कैसी ग्रोथ होगी उस टाइम, लेकिन हाँ, आई विल स्टार्ट राइटिंग अगेन। अच्छा अंशिका, लेट्स टू दिस क्वेश्चन। तिक्षा दी, आप बताइएगा पहले। यहाँ पे ये बात नहीं हुई थी मतलब कि वो तो फिर आप तिक्षा नाम से दोबारा बना लेंगी तो फिर आपके फॉलोअर्स तो कुछ लोग आ ही जाएंगे, लेकिन हम बात यहाँ पे इसकी करते हैं कि सपोज यू नो वन नोज यू ऑन कोरा एंड यू आर राइटिंग अगेन फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है, कोई भी नहीं जानता आपको। ठीक है, तो तब कैसे करेंगे? क्योंकि बैन होने के बाद फिर इट्स ईजी टू कम अगेन। ठीक है, थोड़ा बहुत हाथ पैर मारना पड़ेगा, लेकिन आप फिर वापस आ जाओगी। आप ये बताओ कि आप फिर से बना पाओगे? जैसे आपका अकाउंट डिलीट हुआ था, फिर आप एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपको कोई जानता भी नहीं, तब इसका अच्छा, बताओ। मतलब जैसे like you are given a new opportunity here and now you have the sorry so now you have this opportunity in your hand that you, if you do not want to start writing on Quora, like आपको exposure वगैरह however things went for you there, तो आपके पास ये ऑप्शन है क्लीन स्लेट का. would you still go back to your Quora and like make a new account and do everything all ever again? I think एक पर्टिकुलर गोल से मैं कभी कोरा पे आई नहीं हूँ कि मेरा ये गोल है कि मेरे को इतने फॉलोअर्स चाहिए या फिर इतने आंसर्स मेरे को लिखने हैं. मैं बस अपना बोला था मैंने, आई यूज टू वेंट माई हार्ट आउट एंड आई विल कीप डूइंग इट एंड आई विल जस्ट कीप गोइंग विद द फ्लो how I grow, and definitely I will reopen an account because Quora is a part of my life as well, and um, I will. I am really not freaking out in restarting because life में बहुत restart मारा है मैंने. This is a very small thing. That's it. Totally right thing to say. देखो, इन माई केस आई एम समवन जो
एकदम इमीडिएटली फील करती है चीज़ और फिर मतलब लिख के पोस्ट कर देती हूँ मैं, लाइक आई डोंट थिंक टू मच। तो आई डोंट थिंक जो मैंने पहले आंसर्स लिख रही हैं उसको वापस से लिखूंगी। अगर मतलब ऐसे फील होता है तो लिख दूंगी, वरना उतनी मेहनत मैं वापस नहीं करने वाली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तुम बताओ सचिन। Bro, मैं I'm not really अच्छा like if I like अगर मेरे साथ बिल्कुल like just I just hope सबसे पहले मैं वो उठा और मैंने देखा कि like my account has been banned and now realized कि but bro, I was not even Ritik Talatia, why has it happened to me, but you get the point. तो वहाँ पर जाके I think I will obviously recreate an account again, or like पहले वाला answers I will not be able to provide with people, but I will start writing again. I will write in my bio and stuff, like let people know how like I'm back and Quora did this shit to me and I want all of you to take revenge on me. Don't buy Quora share और बाकी और I think I will restart and पुराना आंसर कोई नहीं डालूंगा because I do not have them anymore, but I will, because Quora for me it is something that is very important for me. The Quora has become such important for my life within just a year. जैसे दीक्षा दी के साथ था, दीक्षा दी की तो ग्रोथ काफी इमेंसली रेट से हुई थी, बट जो उनको प्यार वगैरह मिला, जो उनको कनेक्शन वगैरह बना, जो उनको काफी कुछ मिला इस वेबसाइट से, इट इज काइंड ऑफ द सेम विद मी. मेरे को भी काफी सारे कनेक्शन मिले, काफी सारे लोग मिले नए, और आई हैव लर्न सो मच ऑन दिस प्लेटफॉर्म द वे आई वुडंट हैव इफ द pandemic was still there and I did not have any access to the outer world. So I will probably recreate an account more, yeah, and like and create probably 100,000 accounts for like fake Adam D'Angelo and get them kind of verified. Okay, that is it. अच्छा अभिक तुम। आई विल रीस्टार्ट, क्योंकि मैंने कोरा में मैंने कोरा अकाउंट बनाया था 2018 में। तब मैं 8th स्टैंडर्ड में था शायद। आई हैड रीच्ड कोरा फॉर अ स्टडी डाउट और समथिंग, and then I scrolled down for 2-3 days and I left it for 2 years. Then लॉकडाउन में मेरे को पता चला मेरे ईमेल में कोरा डाइजेस्ट के ईमेल्स आ रहे हैं। सो आई चेक्ड इट एंड देन लॉगिन किया। फिर उस दिन से पीछे मुड़कर देखा नहीं हूँ। इट्स लाइक अ पर्सनल डायरी। मतलब पुराने आंसर्स तो ऑब्वियसली मैं डालूँगा नहीं, बट इट्स लाइक अ पर्सनल डायरी फॉर मी, क्योंकि उस टाइम में आई वाज़ लाइक काइंडा डिप्रेस्ड टू, क्योंकि फैमिली मैटर्स एंड ऑल सही नहीं था। द एनवायरनमेंट अराउंड मी वाज़ नॉट क्वाइट गुड, सो आई यूज्ड कोरा एज़ अ प्लेस फॉर improving myself as a writer and as improving my personality, improving my writing skills and all. I used Quora for that and I will continue to use it. बैन, इफ अगर मैं बैन हुआ तो मैं ऑब्वियसली नया अकाउंट बनाऊंगा फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द स्क्रैच, क्योंकि मेरा ग्रोथ ज्यादा जैसे स्टेलर नहीं था। नॉर्मल मीडियम ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट करके गया हूँ, बिकॉज आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच अपवोट। सो धीरे धीरे आई विल स्टार्ट राइटिंग अगेन, बिकॉज आई हैव बीन इन दैट फेज। क्योंकि पहले आई यूज टू गेट अराउंड 10-15 अपवोट्स ईच। वही सेम इंसान मेरे को मोटिवेट करता था, सेम हर एक आंसर को अपवोट करके। आई सो रिलेट टू दिस। yeah, the same 10-15 people will be there in all of your answers, and then suddenly एक बूम हो जाता है, कहीं से 10K 15K मिल जाता है। ऐसा धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसे ही बढ़ रहा है मेरा। बट फिर भी मैं आई रीस्टार्ट कोरा राइटिंग अगेन इफ आई गेट बैन। काफ़ी सही है भाई, काफ़ी मोटिवेटेड लग रहे हो। अच्छा आदित्य भैया आप बताइए। मेरा तो मतलब तुम लोग को 15-16 वोट मिल जाते थे मेरे 100 आंसर्स लिखे, और मुझे बस 3 अपोर्ट्स मिलते थे। एक मेरी फेक अकाउंट आईडी था और 2 मेरे दोस्त थे, बस उन्हीं से। बट फिर उसके बाद मुझे तो पता नहीं, लाइक आई विल डेफिनेटली, मतलब लाइक आई विल स्टार्ट, क्योंकि कोरा बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे मुझे ज्ञान देना अच्छा लगता है। बिकॉज इससे पहले हम फेसबुक पे ज्ञान देते थे, लाइक कुछ हुआ तो फेसबुक पे अच्छा ठीक है ये हुआ, दोस्ती के बारे में लिख रहे हैं करके। फिर कोरा उसका अल्टरनेटिव मिल गया जो कि अच्छा जा रहा था। तो कोरा पे तो ज्वाइन करेंगे, मतलब लिखते रहेंगे। बट
रही बात फॉलोअर्स और उसकी, मुझे नहीं लगता कि पता नहीं क्यों लोग मुझे फॉलो करते हैं। लाइक आई डोंट हैव, जैसे लाइक अंशिका के पास बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो वो बताती है और बहुत ही अच्छा लगता है। अभी की राइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी है, सचिन और अभिक दोनों की। दीक्षा के पास क्या कहते हैं, अपनी नीट की एक जर्नी है जो कि हर साल वो लोगों को बता के इंस्पायर कर सकती है। रही बात मेरी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लाइक पता नहीं, तो पता नहीं पर फॉलोअर्स आपकी ना आएंगे कि नहीं। पर आपके जो आंसर्स है ना काफी लाइक, इज माय वॉइस echoing? हाँ, हम्म, सो योर आंसर्स आर Yes. वेरी एस्थेटिक आई फील। मतलब काफी वो घर वाली फीलिंग आती है, अगर मैं उसको एक सेंटेंस में The word डिस्क्राइब is करूँ, इसलिए down to earth. हाँ, डाउन टू अर्थ एंड रिलेटेबल स्टफ। Yeah. और रही बात लाइक अभी अभी एक ने बोला 10,000, 10,000 तो लाइक मेरे कोई भी आंसर्स को नहीं मिला है, एक को मिला होगा शायद, तो बट लिखेंगे ये है। और रही बात मेरे फॉलोअर्स का, कभी कोई पंगा ही नहीं रहा है, लाइक कभी नहीं, तुम फॉलो करो ना फॉलो करो, इट इज़ नॉट इन माई थिंग। अगर मुझे 25 अब वोट में मिल जाते हैं, आई फील वेरी हैप्पी कि अरे यार 25 अब वोट मिले, लाइक 25 लोगों ने अब वोट किया, बस मेरा वहीं से जो एक सेटिस्फैक्शन का होता नहीं है कि हाँ मैंने ये आंसर लिखा, सभी का होता है कि मैंने ये आंसर लिखा तो एक पर्टिकुलर चीज़ इसको मिले। मुझे 25 मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है 25 लोगों ने, बिकॉज दैट वॉज माई अल्टीमेट गोल व्हेन आई स्टार्टेड, बिकॉज मुझे नहीं मिलता था। तो हाँ, इनिशियली मेरे लिए ना अच्छे आंसर का थ्रेशोल्ड होता था 10 अपवर्ड्स। अब होता है मेरा मतलब Oh, bhai. हाँ, वही हाँ, 10 अपवर्ड्स। डबल डिजिट तो मैं सेलिब्रेट करती थी, फिर हुआ 50 एंड नाउ इट्स 100। तो लेकिन उससे ज़्यादा अभी भी नहीं है। मैंने तो काफी पहले ही अपना लाइक इसे बाउंड्री वगैरह सब सेट कर ली थी कि इफ ऑल ऑफ माय आंसर्स आर नॉट गेटिंग एटलीस्ट 100 अपवर्ड्स आई नीड टू वर्क हार्डर। आई वाज वन ऑफ द पीपल यू सी ऑन कोरा जो अपने आंसर में काफी ज्यादा अपीलिंग और अट्रैक्टिव फोटो डालते हैं एंड नॉट इन अ वेरी गुड मैनर। लाइक आई यूज्ड टू ऐड not explicit but like sexually attractive pictures in my answers so that people get attracted to them and start dating them because मेरे को starting से like मैंने तुम्हारे तू जैसे थोड़ा एम्बिशियस है, तू एम्बिशियस बंदा था। मेरे को that was not the category people were putting me in but okay तो वहाँ आई नो। उनको लगता था कि यार वो कह उन्होंने आंसर पढ़ा कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में फिर उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि भाई तुम्हारे आंसर तो सही थे बट आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन द पिक्चर्स मोर बिकॉज मैंने वो कह रहे थे कि even though your answers are good but people will not click on them people will not upvote them सिर्फ अपलोड लाइक उनके फॉलोअर्स को भी आंसर जाएगा तो दे नॉट हाँ, हाँ फिर वो लाइक आपको ना कैटेगराइज कर देते हैं कि आंसर सही है लेकिन चीप ट्रिक्स यूज करता है या व्यूज के लिए। अरे पहले ही बहुत होता था। और फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि हमने भी फिर किया है यार, ऐसा क्या है, स्टार्टिंग में किया है ऐसा लेकिन फिर बहुत, खुद से अच्छा नहीं लगा तो रुक गए। हाँ बस भाई अपने एक रूल्स होते हैं ना, लाइक मुझे क्या होता है ना कि अभी अगर मैंने कभी कुछ वो किया, मुझे लग रहा है कि यार ये गंदी है या फिर चीज़ी लाइन है या फिर किसी रिलीजन या फिर किसी पर्टिकुलर उसको मैंने किया है बस क्योंकि सार्कास्टिक आंसर आप लिखते हो तो आपको लोग लाइक करते हैं, तो हम जाके उसको इरेज कर देते हैं। अच्छा रही बात जैसे अंशिका ने बताया कि सपोर्ट का, मुझे तो ये होता था ना कि अगर 100 लोगों ने देखा तो उसमें अगर एक सपोर्ट मिल रहा है तो उसका मतलब मुझे ये होता था कि हाँ ये आंसर अच्छा है, मेरा ये इतना कम होता है हाँ। एक्सपेक्टेशन। और धीरे धीरे जैसे लिखना स्टार्ट किया तो लोगों ने बोला कि भाई ये सब पिक्चर वगैरह मत डाल कुछ ढंग का डाल योर आंसर्स आर गुड पीपल विल रीड देम एनीवे। फिर वहां से धीरे धीरे थोड़ा स्टार्ट हुआ और आगे जाके मेरे को रियलाइज हुआ पता है मेरे बट जैसे लाइक तुम लोग तो यार इतने हम्बल हो I'm like I feel a bit I don't know I feel a bit bad when I say this but it was real so I'm gonna say it anyway कि मेरे को स्टार्टिंग से ही like जब मैंने पिछले साल I started writing last year in lockdown मई में मैंने May 14 को मैंने पहला आंसर डाला था एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आंसर मैंने 2 आंसर डाले दोनों पहले आंसर में मेरे को 184 व्यूज आए 1 घंटे में तो अफोर्ड्स वगैरह कुछ नहीं ऑफ कोर्स पहले आंसर में घंटा नहीं मिलता कुछ फिर 2-3 आंसर के बाद मेरे को ठीक ठाक थोड़ा रिस्पॉन्स मिल गया लाइक 6-7 फॉलोवर मिल गए ठीक ठाक रिस्पॉन्स दैट इज व्हाट आई मीन और फिर उसके टाइम के बाद मेरे को थोड़ा लाइक किक मिला कि भाई अब तो करना है और फिर मेरे को लाइक इट वाज लाइक समथिंग कि भाई दबा के व्यूज चाहिए और दबा के वोट चाहिए मैं एफर्ट डालूं चाहे लाइट चली गई इन्वर्टर डाउन है मेरे आई एम फुल इन पसीना बट स्टिल आई विल राइट कि भाई आंसर बिल्कुल टॉप नॉच होना चाहिए और मेरे को व्यूज भी चाहिए वोट्स भी चाहिए इतना क्लियर आई वाज सो क्लियर एंड फर्म अबाउट दिस फिर धीरे धीरे मेरा आंसर वो एक 40,000 व्यूज क्रॉस करा एक दिन में जब मेरे 20 फॉलोवर थे सोचो कितनी शर्म की बात है यार आई थिंक वो
ऑल बता बिन रहे हैं ना देयर वो कि इसमें किक के लिए लिखना Excuse यूपी me, वी हैव Sachin. ऑल बिन I need to go. I have some work. Okay, you guys enjoy. बाय दीक्षा बाय बाय Bye दीक्षा दी bye. Yeah, bye, Dikshadi. Good night. I hope you enjoyed your time here. अच्छा सचिन ओ ऐसे बोल रहा है पटेरा जैसे लग रहा है यूपीएससी का एग्जाम इसने क्रैक कर लिया है और कभी बता रहे हैं कि मेरी सफलता कैसे हुई मैंने क्या क्या प्रयास किए ब्रो उस टाइम यूपीएससी वाला ही फील था जब थोड़ा लग रहा था कि हाँ भाई ठीक है फॉलोअर वगैरह बढ़ रहे हैं और 1,000 तो गोली की तरह बढ़े थे। यार तू खुद को क्यों बोल रहा है पता है मेरे मेरे साथ भी और ऐसा सबके साथ हुआ है जिसको थोड़ा सा वो मतलब स्पाइक मिल गया ना व्यूज में कि तो हम लोग की जिंदगी वही बन जाती है कि ठीक है मेरे हाँ लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जिससे मुझे व्यूज आ सकते हैं ठीक है आज मैंने ऐसा क्या अतरंगी कर दिया जिससे मैं व्यूज को कर सकती हूँ मिल्क तो ये और सब थोड़ा होता है यार और फिर स्टोरी वो अपने आप रश वो शांत हो ये जाता मिर्च मसाला सॉरी मैंने बोल दिया बीच अच्छा पता है बोलो सचिन, बोलो जैसे अंशिका ने बताया बस मैंने उसमें थोड़ा बताया कि थोड़ा सा आप देखिए खोजते रहते हो कि क्या हुआ यार आज कुछ बताओ कोई स्टोरी हुई किसी दोस्त ने कुछ किया है वो कुछ कर रहा है उसने कुछ बोला लाइक अभी भी मेरे दोस्त कहते हैं कि अब तुम ये नहीं करते हो यार ये तो कोहरा पे लिखने लायक है लाइक मेरे दोस्त अभी चिढ़ाते हैं हाँ हाँ एग्जैक्टली मेरे साथ भी वही होता था सबके साथ वही होता है आई यूज्ड टू बी लाइक यार ये स्टोरी बहुत अच्छी चलेगी कोहरा पे और आते चलो थे और मिर्च पोस्ट करते मसाला लगा के इमोशंस हाँ एग्जैजरेट करके लिख देते हैं ब्रो तुम लोग कितना ओपन है और मैं भी लाइक इफ आई वर टू ओपन अबाउट दिस तो मेरा तो सब गया। पर जैसे तुम कह रहे हो लाइक आई डिड नॉट आई थॉट कि सॉरी फॉर द क्रैकर यार यहाँ पे तो पता नहीं लोगों को 4 दिन अरे पहले तू बोल यार कोई नहीं हाँ बोल तू पहले दिन ही बुखार चढ़ जाता लेकिन अभी अच्छा डू यू गाइस क्रैक वो डू यू गाइस यूज क्रैकर्स नाउ? इट हैज आई बीन डोंट 5 मतलब years हाँ वो since I have used नॉर्मल वाले कर देती हूँ जैसे फुलझड़ी वगैरह बाकी रहने दो ब्रो अंशिका फुलझड़ी एट 19। हाँ यार किक नहीं मिलता आजकल Anyway, अच्छा at this point I think we should let the audience also converse with us. So अगर किसी हाँ को question वगैरह पूछने हैं, if you want to ask questions to Manu, to Anshika, to Aditya, to Abhik, it is your chance now. Just raise your hand and I will let you. You can ask questions and for any kind you want until unless they are very personal. You can just go about them. If you do not really feel like speaking in front of so many people, then you can simply just text me your question and I will read those questions out to your respective quorum and they will answer. So सो मैनी पीपल लिटरली 16 लोग हैं यहाँ पे ब्रो 16 लोग इट मैटर्स अ लॉट पता है अरे वो आई थिंक कि जैसे कितने सारे लोग होते हैं उनको थोड़ा लगता है ना अभी काफी लोग थे यार उन्होंने रेस हैंड कर रखा था मैंने एक्सेप्ट किया वो बोलना नहीं चाहते हाँ हाँ होता है यार मुझे भी आई वही एम बहुत होता है लिटरली गेटिंग एनजाइटी सेलिब्रिटी फीलिंग आदत लगा लो हाय भूमिका हाय हाय भूमिका हाय आपको सुनाई दे रहा है मेरी आवाज़? हाँ सुनाई दे रहा बिल्कुल है बिल्कुल बराबर एक मैं खा रही हूँ थोड़ा 5 मिनट के बाद बात करूँ। ये नहीं यार बताना डेफिनेटली था लाइक पूरा घर वाला माहौल है यहाँ पे या ये बहुत ऑफेंसिव था मुझे भूख लग गई अच्छा at this point I think we should talk about things that can get writers to get noticed in front in Quora है ना व्हाट वाज दिस थिंग पता अबे मैं तो शॉक हो गया अंशिका जब मैंने सुना कि 2019 में तेरे 1K फॉलोअर हुए और अभी एक करीब एक साल में ही 16,000 अंशिका की नहीं एक जर्नी साल मुझसे में कुछ पूछो 6,000 7,000 मतलब उतना कुछ फिनोमिनल ग्रोथ नहीं है वो एक ही साल बहुत हुआ था क्योंकि वो एल्गोरिदम यूज्ड अंशिका टू वाज वर्क इन दैट वे एवरीवेयर हाँ क्या क्या अरे जब पता लाइक 2019-20 वाज द पीरियड जिसमें अंशिका ही अंशिका थी अंशिका सिंह के आंसर ये याद है अंशिका सिंह के हाँ फेयरवेल की फोटो नीचे हाँ मैंने वो सब भी बहुत किया है पिक्चर्स वाला जो मेरा एक दौर यार था उस टाइम भी यही सब पिक्चर्स चीजें थी पोस्ट कर मतलब like, फेयरवेल की फोटो पोस्ट करो मैंने तो किया था मेरे आंसर ही दिए उसके जरिए मुझे अपनी फोटोज मिल गई फेयरवेल के लकीली हाँ तो अंशिका तेरे को क्या लगता है व्हाट वाज इट दैट गॉट यू नोटिस्ड
to so many people? एल्गोरिदम टू बी वेरी ऑनेस्ट, और कंसिस्टेंसी, मतलब वो लोग रिकग्नाइज करते हैं ना कि यही मेरे मतलब फीड में आए जा रही है, तो पढ़ लेते हैं इसको, और अगर नहीं पसंद आई तो म्यूट कर दो, सिंपल। एल्गोरिथम। और अगर तेरे को कोई राइटिंग टिप देनी है, क्योंकि पता है हर दूसरे मैसेज जो इनबॉक्स में आता है ना, वो लाइक कैन यू गिव मी सम राइटिंग टिप्स बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट राइटिंग ऑन कोरा एंड आई डू नॉट रियली नो वेयर टू स्टार्ट। आई थिंक शॉर्ट आंसर्स रियली वर्क, और बहुत लंबे पैराग्राफ्स नहीं रखना। मतलब मैं तो पहले पहले मैं बुलेट पॉइंट्स में लिखती थी, बिकॉज मुझे कभी आदत नहीं था ऐसे लंबे पैराग्राफ्स लिखना। फिर मैंने एक बार स्टार्ट किया सीन बेस्ड आंसर लिखना, जैसे सत्यम भैया लिखते थे, और फिर धीरे धीरे मैंने नॉर्मल रेगुलर आंसर्स लिखना स्टार्ट किया। तो आई थिंक सबका वो कंफर्टेबिलिटी देखना पड़ता है कि आप किस जॉनरा में मतलब कंफर्टेबल हो, कि आपकी राइटिंग स्टाइल है। आप एक पैराग्राफ को कोहेसिव वे में लिख सकते हो कि नहीं, एंड रीड योर आंसर्स अगेन एंड अगेन, ताकि वो नॉर्मल रेगुलर बात करने वाली स्टाइल में लिखे हो। आई थिंक दिस वर्क्स फॉर मी। ये तो लाइक शॉर्ट आंसर वगैरह से तूने देखा होगा, जो शॉन कर्नन है और वो अक्षय भैया, उनका आंसर काफी टू द पॉइंट और लाइक 4-5 पैराग्राफ में, वो भी 2-3 लाइन के, उनमें सिमट जाता है पूरा आंसर। यार मैं तो लिखती हूँ ना, तो मुझे लगता है मैं पूरी जिंदगी का बखान कर देती हूँ अपने आंसर्स में। मतलब मुझे ना ऐसे फीलिंग नहीं आती जब मैं शॉर्ट आंसर्स आजकल लिखती हूँ ना, मुझे फीलिंग नहीं आती कि हाँ मैंने कुछ लिखा है। तो मैं सारे इमोशंस अपने आंसर में लिख के फिर मैं पोस्ट करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्शन आता है। अच्छा मनु, व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू पीपल हु आर न्यू टू कोरा, गिवन दैट तू ही कुछ टाइम पहले न्यू था? अरे नहीं ब्रो, हम 2017 से हैं अभी। यार तुम्हारा नाम पहले अभिषेक था क्या? हाँ, वो अकाउंट डिलीट कर दिया था हाँ हमने। भाई मैं आधे टाइम कंफ्यूजन में घूमती थी यार, क्या हो गया। नहीं, फिर वो अकाउंट हमने डिलीट कर दिया था दिसंबर में, फिर दिसंबर में मनु पांडे बना दिया। हाँ पूरा लाइफ का गाथा अभिषेक ने, जो कोरा जर्नी है वो कोरा पे लिखा हुआ, जितना मेरे इनबॉक्स में लिखा है। क्या बात है भाई। अच्छा, पता है भाई, हमें ऐसा नहीं लगता कुछ कि तुम्हें टिप्स हेल्प करेगा, क्योंकि हमने बहुत से लोगों से टिप्स मांगी है। आशीष भैया, अंशिका, आदित्य भैया, और भी बहुत काफ़ी चंदन वी के भैया थे, वो अभी नहीं लिखते, लेकिन उनसे सबसे टिप्स मांगी। लेकिन आर्टिस्ट। भाई, लेकिन वर्क, हाँ, वर्क किसी का नहीं किया, मेरे लिए वर्क किसी का ना किया। आई एम सॉरी, हमने हाँ यही यार, वही बात है। टाइम वेस्ट करने के लिए, हाँ, टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन किसी का टिप मेरे काम नहीं आया। और आज हम किसी का टिप यूज़ नहीं कर रहे हैं सिवाय सचिन के। तो सचिन ने एक बात बताया था कि शॉर्ट आंसर लिखो। अच्छा हाँ, अंशिका तुमने बताया था, सॉरी, कि शॉर्ट आंसर लिखो, याद। तो वो टिप्स के अलावा और कोई टिप्स मदद ही नहीं की मेरी। तो उसी तरह था भाई, हम कुछ कह नहीं सकते। हम पिछली बार भी हमने 2 बार स्टार्ट की, लेकिन फिर भी हम बता नहीं सकते यार। तुम ट्राई कर सकते हो, सिर्फ क्या पता तुम एक अच्छे पॉलिटिकल और रिलीजियस, हो सकता है कि तुम एक अच्छे हेटफुल आंसर्स लिखो बीजेपी और कांग्रेस करके, हो सकता है तुम हिंदू और इस्लाम करो, अच्छे आंसर लिख सकते हो हेटफुल आके। तो भाई तुम्हारे लिए फिर वर्क नहीं करेगा ना कि तुम अगर मेरा पाथ चूज़ करोगे। तो कुछ कह नहीं सकते भाई, एक्सप्लोर करते रहो। तुम हो सकता है एक अच्छे टॉक्सिक राइटर हो सकते हो। तो बी अ टॉक्सिक राइटर, बी अ गुड टॉक्सिक राइटर, ठीक है? Yeah, be good at whatever you do. तुम बताओ सचिन, अब जो सब लोग बोल ही रहा है तो। ब्रो मेरे लिए पता, मैंने पता किसी के इनबॉक्स में टिप्स वगैरह नहीं मांगी। मेरे को स्टार्टिंग से दुनिया भर का ईगो भरा हुआ था, अभी तक कुछ नहीं है। स्टार्टिंग बहुत है कि मैं क्यों टिप्स मांगू यार, मेरे को तो मैं खुद कर सकता हूँ। आई डू नॉट रियली नीड एनीवन, मैं खुद कर लूंगा। तभी मैंने किसी से ज्यादा कनेक्शन वगैरह बने भी नहीं। अभी एक क्लब हाउस के थ्रू आई एम गेटिंग टू नो सो मेनी पीपल, अमेजिंग पीपल हियर। बट स्टार्टिंग में था लाइक कि बस जो हूँ मैं ही हूँ, और बाकी सब लाइक ठीक है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। बाकी लोग भी बढ़िया और मैं भी बढ़िया हूँ। तो इस टाइप का मेरा एटीट्यूड था पहले। उसके बाद जो मैंने टिप्स वगैरह के ये सब मांगे नहीं, और धीरे धीरे जो मैंने कुछ फिगर आउट किया, उसमें यही था कि भाई कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। तुम कंसिस्टेंट डालते रहो, लोगों के फीड में आता रहो। मैं जो इनबॉक्स मेरे मैसेज आते थे, उसमें लोग बोल पीपल यूज्ड टू टेल मी कि ब्रो यू आर अपीयरिंग इन माय फीड अ लॉट एंड आई रियली लाइक इट दैट माय फीड इज शोइंग योर आंसर्स टू मी एंड आई रियली लाइक देम, यू गेट अ फॉलो।
तो ऐसे मेरे को पता चला कि लाइक आई एम डूइंग गुड एट कंसिस्टेंसी एंड मेक योर आंसर्स एट पॉइंट। बाकी जो भी तुमको टिप्स वगैरह मिलेगी ना, ये तो बेसिक लाइक दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू अप्लाई ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इफ यू वांट टू ग्रो देयर। ये तो हर जगह अब मैटर करता है। बाकी मोर ओवर द टिप्स दैट यू रिसीव फ्रॉम पीपल, आई डोंट थिंक दैट दे रियली वर्क। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू जस्ट ट्राई देम एंड देन यू विल रियलाइज यू विल फाइंड योर ओन वे। तुमको पता चलेगा कि जिससे अंशिका कह रही है, मनु कह रहा है कि लाइक यू राइट शॉर्ट आंसर्स, अब क्या पता तुम्हारे लिए वो वर्क ही ना करे। अब देयर वाज दिस राइटर कॉल्ड नमन चक्रवर्ती, या फिर देयर वर सो मेनी आईआईटीएन राइटर्स। अब उनके आंसर देखोगे भाई कितने लंबे लंबे होते हैं, तो वो उनको बोलोगे जबरदस्ती कि भाई आई एम सॉरी अरे बोलना। यार मम्मी, ठीक है। तो अब जैसे वो इतने इनके डिटेल्ड आंसर में इतना सारा टेक्निकल फैक्ट्स वगैरह भर रहता है, देन यू कैन नॉट टेल देम कि भाई तुम 4 लाइन में खत्म करो आंसर, अदरवाइज इट इज नॉट ओनली वो टचिंग द बार। तो जस्ट फिगर आउट योर ओन। हाँ, उनके क्रेडेंशियल्स से भी बहुत कुछ होता है। जैसे इफ़ यू राइट टेक्निकल आंसर्स और आई राइट टेक्निकल आंसर्स और मेरे पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, पीपल विल नॉट रियली वैल्यू देम स्टार्टिंग में। और स्टार्टिंग में अगर तुम्हें ग्रोथ चाहिए तो तुम्हें वो सब नई नीश टॉपिक्स में नहीं लिखना चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। जिसमें तुमको क्रेडेंशियल वगैरह द क्रेडेंशियल वाला पार्ट, इट मैटर्स, लाइक इट इज गुड, इट इज अ privilege to have on Quora. It is not something that you will not grow if you do not have credentials, but if you have them it will help you grow better. हाँ, credentials are मेरे भी like नहीं थे okay यार भाई स्टार्टिंग में। मैं तो बस अपना अब एज लिखती थी, ये सब। मेरे तो अभी भी नहीं है। हाँ हाँ यार, मेरा भी। ठीक है, तो कुछ हम है लोग नहीं। एक और भाई है तुमने कम से कम अपना अच्छा कॉलेज बता दिया है credentials। ना, कॉलेज तुमने बता हाँ दिया अपना। डीयू डाल के हाँ, और अब उसके तक बाद तो वो अपना सिटी बता दियो। अब इससे ज़्यादा क्या चाहते हो? हम तो सिर्फ अपनी सिटी डाले हैं। भाई उससे ज़्यादा बता भी नहीं सकते, वरना आधे पता है वो क्रीप्स आ यार जाते हैं। मेरे साथ स्टार्टिंग में हुआ था 10, ऐसा, इसलिए मैंने खाली इंडिया लिखा था, लिव्स इन इंडिया। ओ भाई, ढूंढते रहो। हाँ अब इंडिया में, मैंने स्टेट लिख दिया। इंडिया में कहीं जाके अंशिका चिल्ला देना आ जाएगी। बट हाँ हम लोग यार, को पता नाम है ही। अंशिका कहाँ से है। हाँ, लिव्स इन कॉस्मोस लिख दो। मैंने भी हाँ इंडिया यार, बहुत दिन लाइक तक कर रखा है। लिव्स इन मेरे पापा का घर, ऑफ कोर्स। ऐसा बहुत लोगों ने लिखा है और यार। क्या। मैं हंस देती हूँ देख के। लिव्स इन सॉलिट्यूड। वो स्टडीज, व्हाई डू यू केयर। हाँ। ये 12-13 साल वाली। अब यार मैं तो चौंक गया, मैंने आई सॉ दिस कमेंट फ्रॉम अ पर्सन ऑन माय आंसर एंड शी वाज 7th grade, लाइक माय ब्रदर इज लिटरली 7th grade, ही इज डाउनस्टेयर्स, और उसे घंटा नहीं पता कुछ। वो लाइक वो बच्चा है अभी, और उसने एकदम परफेक्ट इंग्लिश में 2-3 पैराग्राफ का कमेंट कर रखा था, एंड शी हैड आल्सो स्टेटेड इन दैट कमेंट कि शी इज इन 7th grade एंड शी लाइक्स टू रीड माय आंसर्स बिकॉज़ शी थिंक्स आई एम अ बिट मैच्योर। ओ भाई, इमेजिन। तारीफ मिल गई। ये क्या कहते हैं, हम लोग को लगता है हमारे भाई बहन छोटे हैं बिकॉज वो हम लोग के सामने बोलते नहीं है या हम उन्हें बोलने नहीं देते। इस उम्र में तो लाइक आई हैव डन अ लॉट ऑफ कांट्स बाय 7th grade। आई हैव डन अ लॉट। मैंने भी स्कूल में बहुत किया है 10th तक। मैंने 12th तक किया है, लाइक एकदम प्रॉपर वाला हाँ, 11th में मैं थोड़ी सुधर बॉम्ब गई थी। फोड़ना करके। अच्छा मुझे जानते क्या लगता है, लाइक जैसे सचिन ने बोला कि वो मैंने किसी से टिप्स नहीं मांगी क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे ये लगता था क्या करके रहेंगे, मुझे यहाँ पे कोई बिजनेस थोड़ी स्टार्ट करना है कि अरे पूंजी कहाँ पे लगाएंगे थे। बट मैंने ना बस के लिए एक पॉइंट आ जाता है जब आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, मतलब ये लोग ग्रो कर रहे हैं, आप ही के एज के हैं, तो यू सी कि मुझे भी कुछ करना है। मैंने क्या किया ना कि मैंने देखा कि हाँ कैसे कैसे लोग कर रहे हैं, तो इवॉल्व होते रहे। जैसे बुलेट्स का यूज़ करना मुझे नहीं आता था, तो मैंने मतलब कि लाइक कुछ लोग से पूछा कि बुलेट्स कैसे लगा, क्योंकि अट्रैक्टिव होते हैं आंसर्स, या फिर मतलब कुछ कुछ उनकी चीज़ें इस्तेमाल करना अपने आंसर्स पे। बट आप उस चीज़ से स्टिक नहीं कर सकते, लाइक आपको एक अपना खुद का एक फॉर्मूला, जैसे कि लाइक मेरा अब ये है कि लोग मुझे एक पर्टिकुलर राइटिंग स्टाइल के लिए जानते हैं, हम ये बोल रहे हैं आप इवॉल्व करो एकदम बेशर्मी के साथ, लोगों की चीज आइडियाज या फिर जो भी है आप वो चुराओ, बट उसको थोड़ा सा अपना मिक्सचर देके अपना वाला कोई फीलिंग दिखाओ, ताकि लोगों को मतलब लगे कि आप हाँ ये अपना पर्सनल टच होना चाहिए पर्सनल उसमें। टच होना चाहिए। वो लोग एकदम ढूंढते हैं बिकॉज हर जगह सीन, जैसे अंशिका ने बोला सत्यम भैया से अच्छा सीन के आंसर कोई नहीं लिख सकता।
उन्होंने कानपुर सेंट्रल को तो एकदम पॉपुलर कर रखा था उनकी वो हाँ यार लड़कियों से मुलाकात। बट हम लोगों ने वो चीज़ों को लाई और क्या कहते हैं एक अच्छा खासा टच दिया और देखो आज हम लोग के आंसर्स मतलब लाइक आई वोंट से पॉपुलर बट पीपल आर रीडिंग इट। तो आपको एक खुद का रखना चाहिए अनलेस अंटिल आप एक राइटर नहीं हो लाइक ब्रो सचिन की पता है ब्रो, मैटर तो कुछ भी नहीं घंटा करता राइटर हूँ मैं। भाई, मैटर तो कुछ भी नहीं करता हो तो तुम बिलियनर भी बन जाओगे फिर भी मैटर तो कुछ नहीं करता है एट द एंड ऑफ द लाइफ। लेकिन पता है वो व्हाट मैटर्स इज बूस्टिंग ईगो। पता है ईगो बूस्ट करता है। तुम भले ही कोरा पे लिखते हो लेकिन आई डोंट थिंक कि किसी और के साथ हुआ हो या ना हो, पता नहीं, लेकिन मेरे साथ हुआ है तो इट हैज़ बूस्टेड माई ईगो। तो उसने वर्क किया है। तो मैटर तो भाई, मैटर की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तो कुछ भी नहीं करेगा, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, इन सबको क्योंकि मरना ही है भाई, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन बात अच्छा समझो। ये तो इट्स डीप बूस्टेड शिट माय हो गया ईगो थोड़ा। बट क्या कहते हैं ईगो बूस्ट नहीं किया बट मुझे थोड़ा सा ये हो गया कि हाँ एक सेल्फ रिस्पेक्ट की आ गई कि कॉन्फिडेंस लाइक आता है थोड़ा। हाँ कॉन्फिडेंस आ चुका है कि लाइक हाँ वहाँ पे जैसे लाइक अभी कुछ होता है ना तो आई पुट माई पॉइंट्स जैसे पहले हम नहीं रखते थे तो अभी हम बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए तुम यहाँ पे गलत हो पहले हाँ हम नहीं बोल जैसे, पाते थे लोगों से। हाँ सही बात है। और जैसे ना रियल लाइफ में कोई सुनने मतलब किसी का इंटरेस्ट यूजुअली होता यस नहीं ऐसे नहीं है सुनने में। Like when I used to, जब तुमको थोड़ा मेरे को उससे थोड़ा ईगो वगैरह तो नहीं मिला, but what I got from Quora is that I am also a person of myself and I have rights to claim my views and like मैं अगर कुछ point view रखता हूँ तो if you even if you are not accepting them then at least you will have to respect them because मेरे को वहाँ पे काफी ज्यादा थोड़ा वो मिला था validation यस Quora पे। एटलीस्ट यू आर एक्नॉलेजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ माय व्यूज और वही हाँ काफी एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। फॉर मी व्हाट इज अ रीजन लाइक अभी 3 साल हो गए आई एम नॉट मतलब हम कब लिखते रहते हैं बट बहुत ही अभी रेयर हो गया जैसे हम 2018-19 में लिखते थे। बट मेरा एक सोल रीज़न है जिसकी वजह से हम कोरा पे रोज आते हैं मतलब पढ़ते रहते हैं वो ये कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं देयर इज लाइक 100-200 लोग हैं जो मेरे आंसर्स को पढ़ते हैं मुझे बस इसी चीज़ से बहुत खुश है बिकॉज हम चाहें तो वो चीज़ अपने व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं बट लोग वहाँ पे ना एक बटन एक क्लिक करेंगे और वहाँ से चले जाएंगे बट यहाँ पे 100-200 लोग हैं जिसमें से शायद 50 मान के चलो या फिर 10 मान के 10 लोग उसको पढ़ते हैं और फिर उससे थोड़ा बहुत सीख के वो नीचे कमेंट में जाके कुछ बोलते हैं ये बहुत बड़ी बात होती है लाइक आपकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है और 10 लोग अनजान जगह से जिनको आप नहीं मिले हो जिनसे आपका कभी कुछ एकदम नहीं हुआ है बट वो आपके चीज़ों को पढ़ रहे हैं ये यही चीज़ अगर आपको मिल जाए तो आपको आई डोंट थिंक कि आपको व्यूज़ या फिर ये चीज़ें मैटर करेंगे कभी भी। और मेरा यही रीज़न है कि मैं कभी भागा ही नहीं मतलब कि मुझे 4,000 10,000 कितने भी हो जाए हाँ खुशी होती है आई वोंट से कि एक खुशी होती है कॉन्फिडेंस नहीं आता ये करके बट हाँ एक जो ग्रीड होता है वो कभी नहीं है मेरे अंदर। वही जैसे कि लाइक अब हम क्या कहते हैं अब जैसे वो 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन ऐसे 10 मिलियन व्यूज हो गया। अब वो मेरे को इतना लाइक इतना वो इतना डोपामिन का रश नहीं देता कि लाइक ओ माय गॉड आई एम नॉट एबल टू सिट calmly so that now that you have reached 10 million views on my account it is something that was totally out of the world. It was not really like that. The way it happened in starting when like I in one of my answer in the very beginning of my journey one of my answer got 14,000 views within an hour. And you will not believe but I was not able to like sit calmly inside my room. I was मैं इधर घूम रहा हूँ उधर घूम रहा हूँ I'm walking around but I'm not able हाँ to sit हाँ calmly मेरे साथ भी ये ऐसा कैन हुआ था फील इट लाइक कि ब्रो क्या हो गया ये क्या हो गया ये तो सोचा ही नहीं कि था। मैं तो कि भाई तुम्हारा पॉपुलर हो गया पता भी है मैं कौन हूँ मतलब ऐसा वो ओए वाला फीलिंग मेरा होता है। जानते हो क्या हुआ एक बहुत ही फनी इंसिडेंट है क्या हुआ कि मेरे आंसर्स 5 के पहुंचने वाले थे अभी हम फोन को वो कर रहे हैं 5 मिनट में देख रहे हैं तो 10-15 करके वो पहुंचते जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज होती है बिकॉज एक पॉइंट पे आपको कोई नहीं अपवोट करता है और अभी ऐसा है कि हर ही 5 मिनट में आपको 10-15 अपवोट्स आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं 5,000 पे तो मतलब like होता है ना चेहरा मेरा रोड पे ग्लो कर रहा है और हम रोड पे एकदम तेज आवाज में यार ये क्या हो रहा है यार पीपल आर लाइक अरे बहुत एम्बैरेसिंग। और अच्छा उसमें लगता है। उसमें एक दो लोग मैसेज भी कर दे भाई तुम तो बहुत अच्छा लगते हो ब्रो यू हैव लाइक लिटरली टेकन माय स्लीप अवे फ्रॉम मी। अरे ऐसा कौन अभी मैसेज कर दिया रिसेंटली यार आई रोड तेरे को। और पता है थोड़ा लड़कियों से वैलिडेशन मिल जाता है ना। ओ भाई स्टार्टिंग में मिलता था अभी तो लाइक अब इट डज उनके नॉट। साइड से मिल जाए बस। यार मेरे को तो मिला ही नहीं चलो कोई नहीं बताओ।
और फिर वहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं भाई मेरे को तो थोड़ा बहुत ऐसे मैसेज इस टाइप के मैसेज आते थे स्टार्टिंग में मैंने कभी वो फोटो वोटो डालने का मेरा सिस्टम था ही नहीं अभी थोड़ा स्टार्ट किया तो लोग मेरे प्रोफाइल में घुस घुस के ऊपर से मेरा नाम मेरी फोटो गूगल पर भी आ रही थी And भाई साहब फिर तो बस क्या ही वो मेरा नाम गूगल कर देते तो वो मेरे फोटो वगैरह आ जाती थी तो दे वर एबल टू लुक एट मी हाउ आई रियली लुक्ड तो दे वर टेक्स्टिंग मी भाई तुम तो आर्यन खान जैसे लगते हो एक साल पहले अभी तो लाइक वो प्रॉब्लम ओ भाई मैं कह रहा यार क्या कह रहे हो तुम के पॉप आइडल वैसे तो मैं paparazzi ना कैप्चर करने के लिए voice and it feels really good that when people on the internet do not really it actually does did not Also really like because it did not कि रियल लाइफ में तो ऑब्लिगेशन है ना मेरे से बात करनी ही है लोगों को ऑनलाइन हाँ तो दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड ना उनको पसंद है या फिर कुछ पसंद आ रहा होगा तभी दे आर स्टिकिंग टू मी so that's one of the most motivating factors I guess. and even then they feel such an close interaction such a close and wo connection to you that they are texting you they are also getting happy for you when you achieve little things in your life कि जैसे हाँ अब तुमने हाँ कुछ छोटा सा एग्जैक्टली तुमने कोई अपना लाइफ में कोई भी क्या कहता है एक छोटा सा मार्क अचीव किया and like you got into your favorite college or you got into or you scored really best in particular exam and they're also happy they're also texting you by I'm very happy for you and you totally deserve this and totally and good luck for your life you know they do not really have to do any of that but still they do because they care for you हाँ लाइक फेलियर्स में लाइक आई रिमेम्बर लास्ट ईयर सचिन टेक्सटेड मी जब मेरा वो अच्छा नहीं आया था फ्लैट रिजल्ट का हाँ क्लैट का तो उस समय भी मुझे 2-3 लोगों ने फिर सचिन ने मैसेज किया था तो इट फील्स लाइक यार इनको क्या ज़रूरत है मुझे टेक्स्ट करने का लाइक दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड मुझे जानते नहीं है पर्सनली लेकिन आंसर्स पढ़ के थोड़ा वो बॉन्ड ऐसा डेवलप हो जाता है दैट यू फील गुड एंड बैड फॉर द पीपल अभी मैंने वही तो bro you बोला कि remember अगर हम कल को अंशिका हाँ फ्रेंड आई नहीं डू है तो 3 साल का मैंने बात नहीं की है अभी ये तो ये क्लब हाउस का थैंक यू बोलो कि बात या फिर आवाज सुननी या फिर आई नो कि हाँ हाउ अंशिका साउंड्स या फिर कुछ की बट एक 3 साल का हम लोग का बॉन्ड है हम लोगों ने अपने आंसर्स में अपने आप को हल्का फुल्का तो दर्शा ही दिया है और वो चीज़ से एक बॉन्ड बन जाता है तो अगर ऑब्वियसली आप मिलोगे तो कल को आप ये बताओगे लोगों की देखो मैंने इस पर्टिकुलर बंदे से मिला हम लोग का 3 साल का एक लाइक हम लोग इतने जानते हैं करके तो ये हाँ चीज़ें मैं बहुत तो मैटर पता है करती अपने हैं यही बोलती हूँ कि ना मेरे कोरोना का दोस्त है मतलब लाइक वी आर नॉट दैट ग्रेट फ्रेंड्स वही है मोस्ट ऑफ अस एग्जैक्टली पर आंसर पढ़ के ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो भाई है मेरा ये तो बहन है ये तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है दैट बॉन्ड इज काइंड अनएक्सप्लेनेबल मेरे साथ क्या होता है कि मुझे रोजमर्रा के लाइक कभी कभी होता है कि कुछ लोगों के स्पेशली लड़कियों के आते हैं तो मेरे बेस्ट फ्रेंड को पता था लाइक यूजुअली लाइक किससे बात कर रहा था मेरे मुंह से नाम निकल जाता है तो कभी दीक्षा करके तो अभी वो क्या बोलता है तुम्हारा तो अलग है कोरा की लाइफ में तुम बिजी हो कभी दीक्षा कभी कौन मेरे कभी दोस्त भी गीता ऐसे कभी बोलते गीता थे एंड करके अच्छा पता है सचिन अच्छा मनु हाँ हाँ वही like I was about to say this that you need to stop हाँ recording हाँ from this point on समझ गए हाँ हाँ ठीक यू है शुड तो अभी या अभी बंद कर दें तो फिर रिकॉर्डिंग बंद कर दो अभी 1 घंटा 27 मिनट हुआ है 3 मिनट और चला दें 3 मिनट और अब बोलो कोई जबरदस्ती ज्ञान यार और ये सब बता दो अपलोड होगा हम लोगों ने क्या क्या बात कर कुछ दी नहीं बोला यार है अरे तूने तो कुछ भी नहीं बोला मुझे मैंने स्टार्ट किसी दो की बुराई तो नहीं की है प्लीज ब्रो नाम किसी का नहीं लिया लाइक वी डिड नॉट लिया नेम है एनीवन किसका लिया लिया है लिया है शट ब्रो अप ब्रिया लिया है भाई लिया तो तूने तो बहुत आई हैव लिया है फॉरगॉटन सी इट्स जस्ट बीन एन आवर एंड आई हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन अबाउट दिस सो आई बिलीव हाँ पीपल विल डू तेरे द जैसे सेम नहीं है ना सब अरे तो नहीं आई हैव आल्सो टेकन हम कोई मुझे बताओ मैं उस बंदे को पहले से मैसेज कर दूं कि यार मैंने गलती से दिव्यांश कर लिया मेरे मुंह से दिव्यांश निकल अंकिता गई नहीं नहीं तुमने अरे सबसे वो तो तुमने ऐसे ही उसका उनका तो नहीं भाई अरे वो चलता तो है बहुत तुमने था सबसे खतरनाक वाले का किया है जो अभी बैन हो गया है 17,000 पे आके भाई ऋतिक अरे अरे काहे ले रही हो नाम भाई उप्स कट कर वैसे देना यार जो भी हैं सब अच्छे ही हैं अब क्या कर सकते हैं सबका अपना अपना लाइफ भाई अब like he did हाँ got banned एग्जैक्टली he did get banned so I think it is not something to be embarrassed about ना मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला कि he got banned for good reasons or bad हाँ reasons just सच्चाई saying that he है did ट्रूथ इज अ डिफेंस kind of so हाँ तो मनु like you need to stop recording from this